गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम अभी एलिकॉन मीटिंग में जमा हुए हैं। आज एलिकॉन का आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलेगा। तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए मैं ग्रेट लीडर दिव्यांगी मैम जो ब्रीड की स्टूडेंट है, वो ट्रेनर भी अच्छी है, वो ट्रेनर आपको ट्रेन करेगी। आप नोट पेन लेके बैठ जाइए कि कैसे आप प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करेंगे, कैसे प्रोस्पेक्ट का लिस्टिंग करना है, कैसे आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करेंगे। डिटेल में आपको ये नॉलेज मिलेंगी। तो अभी दिव्यांगी मैम लाइन पे है। दिव्यांगी मैम, नाउ मीटिंग इज योर्स। थैंक यू दर्शन भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या गुड मॉर्निंग मैम, एवरीवन इज म्यूट। मैं खुद भी म्यूट हो जाता हूँ और आपको ही सुनेंगे, हाँ कोई बीच ओके में नहीं ओके। बोलेगा। और कोई भी अनम्यूट मत होना प्लीज। टेक योर नोट एंड पेन। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, सो बी रेडी। क्या मैम? थैंक यू दर्शन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, માય સેલ્ફ દિવ્યાંકી ટંડેલ. ગુજરાતીમાં જ લઉં છું, ચાલશે ને દર્શનભાઈ? दिव्यांकी मैम, आपका माइक थोड़ा स्लो आ रहा है, थोड़ा नजदीक ले लीजिए। બરાબર છે હવે? हाँ, હવે બરાબર છે। थोड़ું ઓકે, ओके। ડન ગુજરાતીમાં ડન। જ લઉં દર્શનભાઈ? ગુજરાતીમાં ડન, ગુજરાતીમાં ડન। ઓકે થેન્ક યુ. મારું નામ દિવ્યાંકી ટંડેલ છે અને એકચ્યુઅલી હું પણ નવી જ છું એલિકોનમાં, એટલે કંઈ ભૂલ થઈ જાય, કંઈ મિસ્ટેક થઈ જાય તો માફ કરી દેજો. હવે આજનો મને ટોપિક દર્શનભાઈ આપેલો છે હાઉ ટુ લિસ્ટ. આઈ ઇન્ટરપ્ટ અને યુ, તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન મારાથી રહી ગયું। ડીકે ટંડેલ સર, કે જેમને તમે ફરીથી મને શબ્દ નથી મળતો, આંખો માટે શબ્દ છે બિપિન ટંડેલ સર, અપલક નજરે, બરાબર છે, પલકો ઝુકાવ્યા વગર આપણે કોઈ વસ્તુને જોઈએ તો અપલક। એવું જ ડીકે ટંડેલની સ્પીચ માટે, ટંડેલ સરની સ્પીચ માટે અપલક જેવો મને કોઈ શબ્દ મળતો નથી, પણ બધાએ સાયલેન્ટલી સાંભળ્યા છે। તો એમની જ આ દીકરી છે, ગ્રેટ લીડર છે, અને એમવેમાં જોરદાર એમણે લગભગ 500 થી 1000 જણા વચ્ચે સ્ટેજ પર લોકોને ટ્રેનિંગ આપે છે। ભલે એવું બોલે કે મને નથી આવડતું, પણ અદ્ભુત એમની જોડે નોલેજ છે। ડીકે ટંડેલ સરની જ દીકરી છે, એને સાંભળવો એક લાવો છે। થેન્ક યુ, ગો ઓન મેમ। દર્શનભાઈ તમે થોડું વધારે કરી દીધું. ઓકે વાંધો નહીં. આજનો મારો ટોપિક મને દર્શનભાઈ આપેલો છે હાઉ ટુ મેક નેવર એન્ડિંગ લિસ્ટ અને હાઉ ટુ ઇન્વાઇટ. હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લઉં છું હાઉ ટુ મેક લિસ્ટ. એમાં સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે, નોટ ડાઉન કરી લેજો, ઇન્ક્લુડ એવરીવન. આમાં જ બધું આવી જાય છે કે હું શું કહેવા માંગુ છું. ઓકે મેમ। મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે હોલ વર્લ્ડ ઇઝ યોર માર્કેટ. એટલે બધાને, બધું આખું વર્લ્ડ આપણું માર્કેટ છે, એટલે બધાને ઇન્ક્લુડ કરવાના લિસ્ટ બનાવતી વખતે. આપણા સ્કૂલના ફ્રેન્ડ, કોલેજના ફ્રેન્ડ, જોબ આપણે 2-3 જગ્યાએ જોબ કરી હોય, કોઈ બી જગ્યાએ જોઈ બી છે, આપણા પડોશી છે, બધાને, કોઈને બી છોડવાના નહીં. હું વધારે ડિટેલમાં નહીં જોઉં કેમ કે મેં થોડું પ્રિપેરેશન નથી કરેલું, એટલે મને ડોન્ટ વરી મેમ, ડોન્ટ થોડું વરી, માફ કરી દેજો. વી આર વિથ યુ, ડોન્ટ વરી। સોરી. હા, તો પહેલો પોઈન્ટ છે ઇન્ક્લુડ એવરીવન. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ છે ચેન્જ યોર એટીટ્યુડ ફ્રોમ સેલિંગ ટુ શેરિંગ. હવે એનો મતલબ એ છે કે આપણે લિસ્ટ તો બનાવી દીધું, મારા અપ્લાયને મને કીધું અને મેં બી સાંભળી લીધું, પણ મેં લિસ્ટ બનાવ્યું નહીં કેમ કે મને અંદરથી એક બીક છે કે સામેવાળો વ્યક્તિ શું વિચારશે, કે મારા બદલે પછી મારો ફોન ઉઠાવશે કે નહીં પાછો, આ તે બધા બહુ બધા ક્વેશ્ચન થાય. તો જનરલી લોકો લિસ્ટ બનાવતા નથી આપણા કહેવા છતાં બી. તો એના માટેનું એક સોલ્યુશન એ છે કે એમાં બહુ બધા ક્વેશ્ચન હોય છે બધાના માઇન્ડમાં, એના માટે એ લોકો નથી બનાવી શકતા લિસ્ટ. તમને બધાને પોતાને બી ખ્યાલ જ હશે, જે નવા જ્યારે જોઈન થયા હોય, આપણા માઇન્ડમાં બહુ બધા ક્વેશ્ચન હોય કે કરું ના કરું, કેવી રીતના કરું, સારું હશે નહીં હશે, કંપની સારી હશે, ફ્રોડ તો નહીં નીકળે, આ તે બધું.
હું કેવી રીતના એના એ બધા ક્વેશ્ચનના લીધે આપણે લિસ્ટ નથી બનાવતા. તો એનો એક સોલ્યુશન એ છે કે તમે તમારો એટીટ્યુડ ચેન્જ કરો. બધાને બિઝનેસ બિઝનેસ માઇન્ડમાં આવે એટલે બધાને પ્રોડક્ટ આવે ને સેલિંગ મગજમાં આવે. તો આપણે સેલિંગને માઇન્ડમાંથી કાઢી નાખવાનું છે અને શેરિંગ પર ફોકસ કરવાનું છે. જે દિવસે આપણે સેલિંગને માઇન્ડમાંથી કાઢીને શેરિંગ પર ફોકસ કરીશું એ દિવસે આપણે ઓટોમેટિક લિસ્ટ બી બની જશે ને બધું જ જાતે જ થઈ જશે. અદ્ભુત અદ્ભુત. બધાના મગજમાં પહેલા સેલિંગ આવે, પણ ખાલી આપણે આપણો એટીટ્યુડ ચેન્જ કરવાનો છે કે આપણા પાસે એક ગોડે એક આટલી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે તો આપણે એને શેર કેમ ન કરીએ, આપણે કેમ આપણા સુધી સીમિત રહેવા દઈએ, આપણે એને શેર કરવું જોઈએ. એ ભાવના જ્યારે આપણામાં આવશે ત્યારે આપણે ઓટોમેટિક લિસ્ટ આપણું આગળ વધશે ને બની જશે. અને એ ભાવના લાવવા માટે આપણે આપણી કંપની પર ફેથ હોવો જોઈએ, પ્રોપર નોલેજ લેવું જોઈએ કંપનીનું, અને બધી રીતના આપણે પ્રિપેર હોવું જોઈએ કે મતલબ 100% આપણને ફેથ હોવો જોઈએ કે ના હું બરાબર રસ્તા પર છું. પછી થર્ડ પોઈન્ટ છે મેક યોર લિસ્ટ ઇન અ ડાયરી. હવે ઘણા લોકો આપણને એમ કે છે કે ના ના લિસ્ટ લખવાની કઈ જરૂર નથી, મને બધું યાદ છે, બધું મારા મગજમાં છે, કોને કોને કહેવાનું છે, કોને બતાવવાનું છે, બધું મને ખબર છે. પણ એનું એક હું રીઝન કહું કે અત્યારનો જે અડધા કલાકનો સેશન પતશે ને તરત જ તમને કોઈ પૂછશે તો તમે એમાંથી 25% બી નોલેજ તમે કોઈને કહી નહીં શકો. તમે ક્યારે કહી શકશો જ્યારે તમે લખેલું હશે ડાયરીમાં. એવી જ રીતના લિસ્ટ બનાવવાનું પણ એ જ રીઝન છે કે આપણે ડાયરીમાં લિસ્ટ શું કરવા બનાવવાનું કે આપણા મગજને ખાલી કરી નાખવાનું અને આપણી આંખ મતલબ આપણે આપણી દ્રષ્ટિમાં રહેવું જોઈએ કે મારે આ કામ કરવાનું છે, એના માટે લિસ્ટ બનાવવાનું. મગજમાં આપણે બધું નથી યાદ રાખી શકવાના. જે ડાયરીમાં લખેલું હશે ને તો તરત જ માઇન્ડમાં આવી જશે. નેમ, મોબાઈલ નંબર, પ્લેસ, નેમ, મોબાઈલ નંબર, પ્લેસ. એ રીતના તમે લિસ્ટ બનાવશો તો કોઈનું નામ તમને મળશે, કોઈનું પ્લેસ મળશે, કોઈનો મોબાઈલ નંબર નહીં મળે. તો જ્યારે બી તમે લિસ્ટને ચેક કરશો તો તમને એમાં મોબાઈલ નંબરમાં સ્પેસ દેખાશે તો એ તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જશે કે આનો મોબાઈલ નંબર મારી પાસે નથી. અને ગયા વીકમાં જે દર્શનભાઈએ બુકનું નામ આપેલું રહસ્ય ધ સિક્રેટ, એ જો કોઈ વાંચી હોય અત્યાર સુધીમાં તો એમને ખબર હશે કે વાઇબ્રેશન અને એ જે તમારા થોટ છે એનું શું રિએક્શન થાય. તમને એ ખાલી જગ્યા જ્યારે દેખાશે મોબાઈલ નંબરની તો તમારા મગજમાં એ જ રહેશે કે આનો મોબાઈલ નંબર મારી પાસે નથી, આનો મોબાઈલ નંબર મારી પાસે નથી. કેવી રીતના આવે, કેવી રીતના આવે? તમે બિલીવ નહીં કરી શકો. એનો મોબાઈલ નંબર તમને જો તમે કન્ટિન્યુઅસ 3 થી 4 દિવસ એ ક્વેશ્ચન તમારા માઇન્ડમાં રહ્યો તો તમને સામેથી એનો મોબાઈલ નંબર મળી જ જશે. પછી ફોર્થ પોઈન્ટ છે લુક ફોર હાઈ ડ્રીમર્સ ધેન યુ. હવે ઘણા લોકો જ્યારે લિસ્ટ બનાવતા હોય છે તો એ લોકોના મગજમાં બહુ બધા એ હોય છે કે કોનું લિસ્ટ બનાવું, કોનું ના બનાવું, એટલે કોનું નામ લખવું, કોનું ના લખવું. તો જનરલી બધા એવું જ કરતા હોય છે કે આપણાથી નીચા લેવલના હોય કે આપણાથી થોડા ઓછા પૈસાવાળા છે તો આપણી વાત માની લેશે. એવું નથી કરવાનું. લિસ્ટમાં બધાનું નામ લખવાનું છે. પ્લસ જે તમારા કરતાં વધારે ડ્રીમર છે, બધાને એવું લાગતું હશે કે આ તો આના તો સપના બહુ મોટા છે એટલે આ તો આપણી પથારી ફેરવી નાખશે, આ આપણી પાસે આવું કરાવશે, આ તેવું કરાવશે. પણ એ જ વ્યક્તિ તમારો બિઝનેસ વધારશે. જો તમે તમારાથી ઓછા કે નીચેના વ્યક્તિને બિઝનેસ બતાવશો તો મે બી એ કરશે ખરો પણ તમારો બિઝનેસ વધારવામાં એ થોડું હેલ્પફુલ ઓછો થશે. જેમ કે ધારો કે ડ્રીમર હોય એ લોકોને કંઈ શીખવાડવાની જરૂર નહીં પડે, એ જાતે જ એનું કરી લેશે. પછી 5મો પોઈન્ટ છે મેક લિસ્ટ વિથ યોર સ્પાઉસ ઓર ફેમિલી. મતલબ કે તમે જ્યારે બી લિસ્ટ બનાવવા બેસો તો તમારા વાઈફ સાથે કે હસબન્ડ સાથે લિસ્ટ બનાવવા બેસો. અને જો તમે સિંગલ હોવ તો તમારા મધર કે તમારા ફાધર કે તમારા બ્રધર સિસ્ટર સાથે લિસ્ટ બનાવવા બેસો.
એનું રીઝન એ છે કે અમુક વખત આપણને કોઈના નામ નથી યાદ હોતા, કોઈનું નામ મોબાઈલ નંબર કે કોઈ બી કોન્ટેક્ટ જ્યારે તમે સાથે લિસ્ટ બનાવવા બેસશો તો હા પેલા ભાઈ આપણે અહીંયા ગયા હતા, એનું નામ શું છે, તો તમારા વાઈફને તરત યાદ આવી જશે કે એનું નામ આ છે, એ આ જગ્યાએથી આવેલા છે. એટલે કોઈ દિવસ એકલા લિસ્ટ બનાવવા નહીં બેસવાનું, સ્પાઉસ સાથે બેસવાનું અથવા ફેમિલી મેમ્બર કોઈની બી સાથે લિસ્ટ બનાવવા બેસવાનું. પછી છઠ્ઠો પોઈન્ટ છે, ડુ નોટ પ્રીજજ પીપલ while મેકિંગ લિસ્ટ. આપણી એટલી ખરાબ આદત છે બધાની જ સોરી કે આપણે છે ને બધાને જજ કરતા, મીન્સ કઈ બી કામ હોય તો પહેલા જજ કરી લઈએ બધાને કે આ કરશે કે નહીં કરે, આ આમ છે, આ તેમ છે, આ તો આવો છે, આ તો તેવો છે, આનો એટીટ્યુડ વધારે છે. તો લિસ્ટ બનાવતી વખતે એ વસ્તુ સાઈડ પર જ કાઢી દેજો, મગજમાંથી કાઢી જ નાખજો કે આ કરશે કે નહીં કરશે. એ ક્વેશ્ચન સાઈડ પર મૂકી દેજો કે આ વ્યક્તિ કરશે કે નહીં કરશે. કેમ કે તમે જો એ ક્વેશ્ચન તમારી જાતને કરશો તો તમે એ વ્યક્તિનું લિસ્ટ નહીં બનાવી શકો, લિસ્ટમાં નામ નહીં લખી શકો. એ એના પર છોડી દો, એ કરશે કે નહીં કરશે. તમે ખાલી તમારું કામ કરો કે તમારે એને બિઝનેસ બતાવવાનો છે, બિઝનેસ શેર કરવાનો છે, પછી કરે ના કરે એની મરજી છે. તમે જજ કરશો તો તમે એને બતાવી પણ નહીં શકો, અને બતાવશો નહીં તો એ મે બી તમારો ડાયમંડ બી હોઈ શકે, તમારા હાથમાંથી એક ડાયમંડ જતો રહેશે તમારો. યસ. અને અમુક વ્યક્તિ એવા હોય છે દરેકના જીવનમાં કે જે આપણું 5% વ્યક્તિ એવા હોય છે કે જે આપણું નહીં જ માને તો નહીં જ માને, પણ ખાલી એમનું લિસ્ટમાં નામ તો લખવું જ, અને સહી સમય મતલબ રાઈટ ટાઈમનો વેટ કરવાનો, એવા ટાઈમે એવા લોકોને બિઝનેસ બતાવી દેવો. પછી કરવું ના કરવું એમના પર ડિપેન્ડ છે. ઓકે. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એન અવર ઓફ પાવર. મતલબ આપણું એક લિસ્ટ બની ગયું અથવા બનાવવાનું બાકી જ છે, તો એક દિવસ એક સવારમાં ઉઠીને એક સંકલ્પ કરી લો કે આજે મારે લિસ્ટ બનાવવાનું છે. પ્રોપરલી બધા તમારા જે ડિસ્ટર્બ થાય તેવા કામ હોય બધા પહેલા પતાવી લો, બધું કામ કરીને ફ્રી થઈ જાઓ, પછી આરામથી બેસો, મૂડ બનાવો કે આજે લિસ્ટ બનાવવાનું છે, ચા અને બિસ્કિટ લઈ લો સાથે અથવા જે ભાવે તે, અને એકાંતમાં બેસી જાઓ અપલાઈન સાથે અથવા ઘરના કોઈ બી મેમ્બર સાથે, અને લિસ્ટ બનાવવાનું ઓકે ચાલુ કરો. મેમ, રિપીટ ફરીથી આ 7 પોઈન્ટ ફરીથી રિપીટ કરો ને તમે. હા, ઓકે. પાવર શું કીધું તમે? પાવર ઓફ પાવર એટલે 1 કલાક એવો કાઢો પાવર વાળો, મતલબ ઓકે. સવારથી તમે તમારા જે બી નિત્યક્રમ છે બધું પતાવી દો, તમારા બધા કામ પતાવી દો, ફ્રી થઈ જાઓ, 1 કલાક એવો કાઢો, મૂડ બનાવી લો કે આજે ભાઈ આપણે આ કામ કરવાનું છે, એકદમ દિલથી મૂડ ઓકે. બનાવી લો. તમને જે ભાવે ચા, કોફી, બિસ્કિટ સાથે લઈ લો, બેસી જાઓ, લિસ્ટ બનાવવા. મોબાઈલને એરોપ્લેન મોડમાં મૂકી દો અને એક સંકલ્પ કરો કે મારે આજે 50 માણસનું લિસ્ટ બનાવવું જ છે, બનાવવું જ છે, બનાવવા સિવાય હું ઊભો નહીં થઉં અહીંયાથી. એ સંકલ્પ કરશો તો તમારું 50 માણસનું લિસ્ટ બની જ જશે. હેલો. હા મેમ, સોરી. બરાબર છે. હા. ઓકે. પછી 8મો પોઈન્ટ છે એક્સપાન્ડ યોર લિસ્ટ. હવે એક વખતનું તમે લિસ્ટ બનાવી દીધું, બધાને બતાવી દીધા. મારા અનુભવ પ્રમાણે તો તમને 6 માણસ તો એકદમ ઇઝીલી મળી જશે, 6 ડાયમંડ તો. યા. તે છતાં બી તમને ના મળ્યા અને તમારે ફરીથી લિસ્ટ બનાવવું પડ્યું, તો તમે તમારું લિસ્ટ એક્સપાન્ડ કેવી રીતના કરશો? ઓકે. લિસ્ટ તમે કેવી રીતના બનાવશો કે ઓલરેડી તમે બધા તમારા રિલેટિવ્સના બધાના જ નામ ઓલરેડી લિસ્ટમાં બનાવી દીધા છે, તો યા. એક્સપાન્ડ કરવા માટે મતલબ આપણે રામનું નામ લઈએ તો સીતા અને લક્ષ્મણ આપણને યાદ આવી જ જાય, એવી રીતના આપણે મામાનું નામ લખ્યું છે તો મામાના 3-4 ફ્રેન્ડ આપણને યાદ આવી જ જાય, મામીની 2-3 બેનપણી યાદ આવી જાય, મમ્મીની બેનપણી યાદ આવી જાય. બરાબર. આવી રીતના તમે તમારું લિસ્ટને એક્સપાન્ડ કરી શકો. જો કે એ વસ્તુની જરૂર નથી પડવાની આપણા બિઝનેસમાં, કેમ કે આપણે ખાલી 6 ડાયમંડ જોઈએ છે, પછી તો ડાઉનમાં જ કામ કરવાનું છે. પછી 9મો પોઈન્ટ છે હેલ્પ ડાઉનલાઈન ટુ મેક લિસ્ટ. એટલે ડાઉનલાઈનને કહી નથી દેવાનું કે તમે તમારું લિસ્ટ બનાવીને રેડી રાખો એમ, કેમ કે કોઈ નહીં બનાવે, આપણે બી નતું બનાવ્યું ઓકે. એટલે બધાને અનુભવ છે.
એટલે ડાઉનલાઈન સાથે બેસીને એમને લિસ્ટ બનાવવામાં હેલ્પ કરવાની. हेल्प डाउनलाइन टू मेक अ लिस्ट, है ना? હા, હેલ્પ ડાઉનલાઈન ટુ મેક લિસ્ટ. ओके मैम. આ લિસ્ટ હાઉ ટુ મેક નેવર એન્ડિંગ લિસ્ટમાં મેં આટલા પોઈન્ટ્સ કવર કરેલા છે. એકવાર બોલી દઉં છું. ફર્સ્ટ છે ઇન્ક્લુડ એવરીવન. સેકન્ડ ચેન્જ યોર એટીટ્यूड फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग. may I मैम, कहीं पे कुछ छूट गया हो तो मुझे बताना, ठीक है? मैं एक बार रिपीट करता हूँ. हाँ. अगर कोई गलत लिखा हो तो मुझे बताना. मैम ने अभी हमें हाँ. सिखाया हाउ टू मेक लिस्ट बनाने के लिए क्या ध्यान रखना है. लिस्ट बनाने से पहले क्या अपने दिमाग में ध्यान रखना है. पहले तो सबसे पहला सटीक पॉइंट ये है इंक्लूड एवरीवन. मतलब कि जो भी है आपके दिमाग में, जो भी बंदे आ रहे हैं, सभी को लिस्ट में इंक्लूड करना है, किसी को छोड़ना नहीं है. तो एक बंदे का एक सेंटेंस है, जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस नेटवर्क मार्केटिंग में. तो सभी को अंदर इंक्लूड करना लिस्ट में. दूसरा पॉइंट मैम ने बताया था चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग. मतलब कि आपको डब्बे बेचने नहीं है, मतलब कि आपको सैनिटाइज बेचने नहीं है, आपको आपका प्लान बेचना है, आपको अपना प्रोजेक्ट बेचना है कि मेरे पास ऐसा बिजनेस है कि आपको ये बिजनेस करना है. आपको सेलिंग नहीं करना है, सेल्समैन नहीं बनना है, आपको बिजनेस पार्टनर ढूंढना है. अगर आप सेल्समैनशिप करोगे तो पूरी जिंदगी सेल्समैनशिप करनी पड़ेगी. मगर ये दूसरा पॉइंट जो मैम ने बताया है उसके मुताबिक अगर आप पार्टनर ढूंढोगे, बिजनेस पार्टनर, ऐसे आप बात करोगे तो जल्दी से बिजनेस एक्सपांड होगा और आपको सेल्समैनशिप करनी नहीं पड़ेगी. तीसरा पॉइंट जो मैम ने बताया वो था मेक योर लिस्ट इन अ डायरी. फोन में तो काफी सारी लिस्ट होती है, मगर एक डायरी में नोट इट डाउन कीजिए, उसको टिक मार करते रहिए, ये हो गया, ये बाकी है, ये हो गया, ये बाकी है. बाद में चौथा पॉइंट था लुक फॉर हाई ड्रीमर देन यू. इसको देखना ही है, आपसे ज्यादा ड्रीम जिसका है उससे आपको चीरना नहीं है. ऐसा कोई बंदा मिलना ही चाहे जो आपसे भी ज्यादा ड्रीम रखता हो, तो उससे आपकी सफलता जल्दी आएगी. पांचवा उन्होंने बताया मेक लिस्ट विथ योर स्पाउस और फैमिली. मतलब कि अपनी फैमिली के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अगर सिंगल है तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के लिस्ट बनाए. वो बैठना है 1 घंटा, वो बैठो तब आपको कोई नाम नहीं सूझेगा. मम्मी वो फूफा के जो भतीजा था, वो था, ये था, वो था, उनके रिश्तेदार में जो थे वो कौन थे, वो हमारे घर पे आए थे, वो पूछोगे तो मम्मी पापा आपको बताएंगे उसके नंबर के साथ. तो लिस्ट बढ़ती जाएगी. ये 5वां नंबर था. छठा नंबर जो मैम ने बताया डोंट जज पीपल. मतलब कि डोंट प्रेडिक्ट योर प्रोस्पेक्ट. ये प्रोस्पेक्ट काम का है कि नहीं काम का है, ये पहले से आपको ऐसा नहीं सोचना है. मानो कि आपने ग्रेप्स खाई ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि ग्रेप्स खट्टी होगी, ऐसा सोचना नहीं है, खा लेनी है. खट्टी है कि मीठी है, खट्टा भी एक टेस्ट है, तो टेस्ट को आपको टेस्ट करना है. तो ग्रेप्स का आपको खा के चख के नक्की करना है कि ग्रेप्स अच्छी है कि बुरी है. बिना खाए आप जज नहीं कर पाओगे, तो खा लेनी है. जो भी ग्रेप्स मिलती है, जो भी प्रोस्पेक्ट है, उसको आपको ये बिजनेस दिखाना ही दिखाना है. 7वां पॉइंट मैम ने बताया एन आवर ऑफ पावर. ग्रेट पॉइंट था, एन आवर ऑफ पावर. मतलब कि आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ आपके दिन के सुबह के जो भी काम है, चाय पानी नाश्ता सबको मिला, न्यूज़पेपर सब पढ़ लिया, बाद में 1 आवर ऐसा निकालो जो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए वो आवर है. वो घंटा सिर्फ आप लिस्ट बनाने के लिए लगाओगे. पूरा दिन में 1 घंटा मिलना चाहिए जो आप लिस्ट बनाए, उसमें फिर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाने पे आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है. बाद में 8वां नंबर मैम ने लिखवाया एक्सपांड योर लिस्ट. एक्सपांड योर लिस्ट. लिस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, मैम ने बताया कि आगे का 7 पॉइंट आप फॉलो करोगे, कभी भी आपको लिस्ट एक्सपांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं कभी भी पड़ी तो आप आराम से एक्सपांड कर सकते लिस्ट को 0 से. बाद में और एक्सपांड योर लिस्ट में हेतल मैम ने एक बार बताया था कि फेसबुक से भी कैसे हम लिस्ट को एक्सपांड कर सकते हैं. हेतल मैम का एक सेशन था पिछले दिनों, तब उन्होंने बताया था कि कोई अननोन पर्सन को कैसे हम लिस्ट में अटेंड कर सकते हैं. ओके, 9th नंबर था हेल्प डाउनलाइन टू मेक अ लिस्ट. मैम ने अच्छे से बताया, हमने अभी तक लिस्ट बनाया नहीं. सभी ऑफलाइन बोलते हैं लिस्ट बनाओ बनाओ बनाओ, तो हमने कभी बनाया नहीं. आज शायद बनाएंगे 1 घंटे बैठ के दिव्यांगी मैम का सुन के. तो अब हमने इतना सुन के बाद में बनाना शुरू किया है,
तो हमारी डाउनलाइन भी ऐसे सुन के बनाएगी नहीं, उसके साथ बैठो और लिस्ट बनवाओ। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट मैम ने बताया। मैम कोई रह गया है तो आप जरा करेक्शन कर लो। दिव्यांगी मैम ના ના બરાબર છે. હા દર્શનભાઈ બરાબર છે બરાબર. और कुछ? अच्छा બસ હવે કોઈને કેવું હોય તો કેવો. नहीं अच्छा था, આ લેવાનું बोलो मैम, बोलो बोलो। हाउ टू इनवाइटिंग. या इनवाइटिंग लिस्ट में अभी मेरे पास कुछ है जो मुझे कदम सर हाँ. और शाह सर ने बताया था अगली एक मीटिंग में। मेरे पास ऐसा था कि कैसे लिस्ट बनाया जाए, तो उसका जो फॉर्मूला सर ने लिखवाया है वही मैं आपको लिखवाता हूँ। और आपके पास सभी के पास जो नेटवर्कर है उसके पास तो होगा ही होगा। उसमें मैंने थोड़ा अपग्रेड किया है, जैसे कि सर ने बताया था फ्रेंड फॉर्मूला, बाद में वो जो भी फॉर्मूला सब है, जैसे पहली फॉर्मूला है फ्रेंड्स, FRIENDS। आप हॉरिजॉन्टली लिख सकते हो। F मीन फ्रेंड, R मीन रिलेटिव, I मीन इंडस्ट्री, E मीन्स एजुकेशन, N मीन्स नेबर, D मीन डियरेस्ट और S मीन स्ट्रेंजर। आराम से फिर से बोलता हूं। F मीन्स फ्रेंड, आपके जो फ्रेंड है उनका लिस्ट। R मीन्स रिलेटिव, रिलेटिव का लिस्ट। अब एक काम करो, मैं अभी मेरा जो भी है, या देखो ऐसे ऊपर लिखना है फ्रेंड, बस इतना लिख के छोड़ दो। दूसरा पेज निकालो, दूसरे पेज में मैं दूसरा जो स्पेलिंग बोलूं वो लिखना है। वो प्रैक्टिकली आप करो, जो करना है मैं दिखाता हूं क्या करना है। मैंने कुछ अपग्रेड उसमें किया है लिस्ट बनाने में। पहले पन्ने में ऊपर हेडिंग कर दो फ्रेंड, दूसरे पेज में हेडिंग कर दो रिलेटिव, माने कि आपके रिश्तेदार। पहले पेज में लिखो फ्रेंड, पूरा पेज छोड़ देना, खाली का खाली टाइटल लिखना फ्रेंड। बाद में दूसरे पेज में लिखो रिलेटिव्स, यानी कि आपके रिश्तेदार, वो पूरा पेज छोड़ देना है। तीसरे पेज में लिखो इंडस्ट्री, माने कि जहां आप नौकरी करते हो या जो भी सर्विस करते हो, इंडस्ट्री के जो भी लिस्ट हो गए वो। चौथे पेज में लिखना एजुकेशन, जहां पे आपने एजुकेशन ली है या दे रहे हो। फिर पेज में लिखना नेबर, जो भी आपके नेबर है, ठीक है। बाद में लिखना है डियरेस्ट, उसके बाद के लिस्ट में लिखना है डियरेस्ट, और सबसे लास्ट में लिखना है स्ट्रेंजर, सबके लास्ट में लिखना है स्ट्रेंजर। ओके, हो गया। अब फ्रेंड वाले पेज में आ जाओ, फ्रेंड वाले पेज में आ जाओ। आप फॉलो कीजिएगा, आपको सही में सक्सेस मिलेगी। फ्रेंड वाले पेज में दो बीच में एक लाइन खींच लो, बीच में एक बड़ी सी लाइन खींच लो। एक तरफ लिखो हॉट फ्रेंड, दूसरी तरफ लिखो कोल्ड फ्रेंड। हॉट फ्रेंड, कोल्ड फ्रेंड, ये मेरी खुद की इजाद है। हॉट फ्रेंड, कोल्ड फ्रेंड। अब ये हॉट फ्रेंड और कोल्ड फ्रेंड क्या होता है? हॉट रिलेटिव, कोल्ड रिलेटिव होते हैं। हॉट इंडस्ट्री, कोल्ड इंडस्ट्री। हॉट एजुकेशन, कोल्ड एजुकेशन। हॉट नेबर, कोल्ड नेबर। हॉट डियरेस्ट, कोल्ड डियरेस्ट। हॉट स्ट्रेंजर, कोल्ड स्ट्रेंजर। ऐसे सभी लिस्ट को दो डिवीजन में डिवाइड करना है। होगा क्या, आपके काफी सारे दोस्त ऐसे हो गए जिनको एलिकॉन से कोई मतलब नहीं, जिनको दर्शन परीक्षा से मतलब है, जिनको अमित सेरे के खुद से मतलब है, जिनको पलक शाह से मतलब है, जिनको मनीषा बहन से मतलब है। बस मैडम जी आप आए हैं, क्या चाहिए? मेरे काफी सारे दोस्त है, 6 के 6 लाइन जो मैं बोलूं पुराने स्ट्रक्चर में मैंने डाले थे, वो किसी को एलिकॉन पता नहीं, उनको इतना ही पता है दर्शन तू आया, तू बिजनेस कर रहा है, ले जाने यार। ऐसे तो आपको 6 मिल जाएंगे हॉट लिस्ट, जिसको आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा, वो आराम से। कोल्ड लिस्ट ऐसा है जिनको प्लान करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट समझाना पड़ेगा, या प्रोजेक्ट है क्या बिजनेस है, या पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में अब जितने को जानते हो, क्या 6 बंदे आपके पास नहीं है जो आप पे भरोसा करके ये बिजनेस में आए? 6 बंदे नहीं मिलेंगे जिनको प्लान समझाना पड़े। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी तक की जिंदगी में इतने तो होने ही चाहिए जो अब में भरोसा करके आ जाए। मेरे में 25 ऐसे है जिनको मैंने प्लान दिया ही नहीं है, अभी तक नहीं दिया, और 25 में से 15 ऐसे हैं जिन्होंने अब तक मुझे बैंक डिटेल नहीं दिए। बोला भाई करता रहे, जब इकट्ठे हो गए तब लेंगे हम पैसा। तो ये भरोसा है आप पे होगा काफी सारों को, तो आपका स्ट्रक्चर आराम से बनेगा। तो हॉट लिस्ट सभी में से 2 डिवीजन कर दो, हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। दूसरा एक सीखा था मैंने, वो शाह सर से सीख के, शाह सर को ही मैंने सामने क्वेश्चन किया था। मैंने बोला ना मैं बहुत ही बुरा स्टूडेंट हूं, टीचर को बहुत परेशान करता हूं। तो सर ने बोला था किसी को भी इनवाइट करने से पहले मैन फॉर्मूला फॉलो करनी है, MAN। मैन मानी मनी,
ए माने ऑथोरिटी एंड एन माने नीडी। उसमें जो पहले वाला जो है मनी वाला, उसमें मैंने सर से बोला था मनी में किसी का देखता नहीं जेब, बिना जेब देखे भी मेरे सपने दिखाने की इतनी चाहत होती है, सपने ऐसे दिखाता हूं कि सामने वाला अपनी गाय बेच के भी मुझे 7,500 देगा। वो मैं प्रेजेंट कैसे करता हूं उसी पे है। तो मनी कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरा जो मांडवी में सबसे पहला आईडी है बिपिन भाई सोमैया, जो रिक्शा ड्राइवर है, उनके घर में से 7,500 निकालना बड़ी बात थी, फिर भी उन्होंने 21,000 निकाले। तब तो 7,000 की आईडी थी, 21,000 कहीं से भी लेके मुझे दे दिया, उसी दिन चेक दे दिया। बोला 3 दिन बाद सर चेक को ट्रांसफर करना, अभी बैंक में कुछ बैलेंस नहीं है। तो आपके सपने दिखाने की चाह ऐसी होनी चाहिए कि उसके पास पैसे है कि नहीं है वो बड़ी चीज नहीं है, सपने कैसे प्रेजेंट होते हैं वही। तो हॉट लिस्ट होना चाहिए, हॉट में से आपको आराम से आईडी मिल जाएगी, ठीक है। बाद में सिलेक्ट कैसे करना है, ये लिस्ट जो बनाया आपने हॉट लिस्ट कोल्ड लिस्ट, इसमें से सिलेक्ट कैसे करना है सर ने जो बताया था। मैन वाला फिर से रिपीट कर दो। मैन यानी मनी, ए माने ऑथोरिटी, एन माने नीडी। ऑथोरिटी तो होनी चाहिए। आप किसी को हस्बैंड को पूरा प्लान दिखाते हो पर घर में बीवी का ही चलता है, तो प्लान दिखाने के बाद वो पूछेगा मेरी बीवी को पूछ के बताऊंगा। किसी बच्चे को दिखा दो, बच्चा बोलेगा मेरे पापा को पूछ के बताऊंगा। तो पहले ऑथोरिटी जज कीजिए, ऑथोरिटी को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ऑथोरिटी कौन है, उसी के साथ सामने प्रेजेंट करना है। कभी कभी ऐसा होता है घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, सबसे छोटा बच्चा, उसकी ऑथोरिटी उसके पापा से ज्यादा होती है। एक एक्सपीरियंस सर को पूछे बिना, सर की परमिशन के साथ, बिपिन टंडन सर की परमिशन के साथ, उनकी बेटी ने ऑथोरिटी ली थी कौन से मकान में रहना है, फ्लैट में नहीं रहना है, बंगलो में रहना है। तो ऑथोरिटी तब वो बच्ची के पास थी, बिपिन सर के पास नहीं थी ऑथोरिटी कौन से मकान में हमें रहना है। तो कभी कभी हमको वो ढूंढना पड़ता है, छोटा बच्चा भी ऑथोरिटी होती है उसके पास। तो ऑथोरिटी किसके पास है वो जज कीजिए, आपका आईडी आराम से आएगा। तो ऑथोरिटी जज आपको करनी पड़ेगी। आप आपके रिश्तेदार को, फ्रेंड को पहचान दे, उसके घर को पहचान दे, उस घर में कौन सी ऑथोरिटी वाली चीज है उसको ही कनेक्ट कीजिए, उसको टच कीजिए, आराम से आईडी आएगी। आप बिपिन टंडन सर की वाइफ को प्रोजेक्ट बता दिया, उनको तो नेटवर्क पता ही नहीं है, तो सुनती जाएगी, बाद में किसी को बताए भी नहीं, घर में बताएगी भी नहीं कि ऐसा कुछ सुना है। तो आपको बताना है बिपिन टंडन सर को या फिर इनकी डॉक्टर जो लड़की है उनको। वो लड़की की जिद ऐसी है, पापा ये फ्लैट में तो मैं नहीं रहूंगी। ले लिया तो ले लो, आपको रहना तो रह जाओ, मैं नहीं रहूंगी। सॉरी सर, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मगर ये होता है, उसी वजह से सर ने अभी 80 लाख का बंगलो लेना पड़ेगा। तो वो ऑथोरिटी होती है सर, वो ऑथोरिटी होती है। और ये अभी जो मैं बताऊं, ये इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। ये सर की पर्सनल बात थी, इसे मैंने कैसे ट्विस्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर पाता हूं। वो जैसे जैसे आप नेटवर्क में उतरोगे, सभी नॉलेज आप कैसे मैनिपुलेट कर पाओगे, वो जैसे अंदर उतरोगे ऐसे ही आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने की ताकत आ जाएगी। नीडी को तो देखना ही है, जिसके पास जरूरत है किसी भी चीज की, उसको अगर अपने ओहदे की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, पैसे वाले की जरूरत वाले बहुत मिलेंगे, पर उससे ज्यादा भी जिनको अपने मान सम्मान की जरूरत है उनको सबसे पहले आप कनेक्ट करो। पूरी जिंदगी नौकरी कर लिया होगा, सम्मान मिला ही नहीं है, तो इसमें आप उनको सम्मान मिलने वाला है, तो लिस्ट में उनको ऐड कीजिए। बाद में है उसमें से 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। 100 लोगों का लिस्ट बन गया, 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है तो वो मैं बताता हूं। वो सिलेक्ट करने के लिए आपको फॉर्म FORM की फॉर्मूला को फॉलो करनी है। अब मैं आता हूं कॉलिंग पे। कैसे आपको किसी बंदे को जो सिलेक्ट किया, 100 में से 10 लोगों को सिलेक्ट कर दो, 100 का लिस्ट बन जाएगा आराम से। मैंने फ्रेंड फॉलोइंग जो सास सर ने, कदम सर ने बताई है, उसमें से आराम से आप 10 लोगों को उधर ढूंढ लोगे, हॉट लिस्ट वाले। उनको कैसे बताना है, आज जाके ऐसे नहीं बताना मैं बिजनेस कर रहा हूं, आजा मेरे भाई मेरे पैसे दे दे, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे सिलेक्टेड पर्सन को FORM लिखो। F फॉर फैमिली ना खबर पूछवा, गुजराती में बोलू छो। F फॉर फैमिली का आपको उससे खबर अंदर पूछना है, कैसे हो, कैसे सब कोई, कैसे मम्मी कैसी है, दादी कैसी है, ऐसे पूछना है। हेलो करके सबसे पहले आप फैमिली का इंट्रोडक्शन लोगे, फैमिली की खबर अंदर लोगे। O फॉर ऑक्यूपेशन, उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी धंधा है, उसके बारे में पूछो।
विपिन सर, आप कुछ कर रहे हो ना, वो धंधा आपका था कुछ टनल वाला, सोमैया जी, तो कैसा चल रहा है, धंधे में कैसा है? अच्छा, आपने सोचा था कि आपके बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी बनाना है, तो क्या हुआ? पता ही है आपको, नहीं बना है। तो धीरे धीरे से वो नस ढूंढनी है, वो नीड उसकी ढूंढनी है, जो नीड पे आप पांव रख के, वो नीड, सॉरी पांव गलत शब्द है, वो नीड उसको बता के, उसको पता ही नहीं उसकी नीड क्या है। काफी बार ऐसा होता है, बंदे को ही पता नहीं उसकी नीड क्या है, नीड हमको ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसे ऑक्यूपेशन के बारे में उसको पूछो, बाद में उसको रिक्रिएशन, रिक्रिएशन माने यार, मैं रिक्रिएशन माने के आप जो धंधे में हो, जो भी ऑक्यूपेशन में हो, इसमें कोई बढ़ोतरी हुई आपकी, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई क्या? आप गाड़ी ले पाए? आप लेना चाहते थे कुछ? दर्शन भाई, आप अल्टो बेच के बलेनो लेना चाहते थे, क्या बलेनो आ गई सर जी आपकी? आपने 2015 में बोला था कि अल्टो एक ही साल रखूंगा, तो अभी भी अल्टो के साथ क्या दिक्कत हुआ? वो फ्रेंड है उसके पास, ऐसे खबर अंदर ले सकते हो। उसके बाद वो बोलेगा, इसका रीजन में वो बोलेगा, जैसे ही ये अपने स्विच दबाई, जैसे ही स्विच दबाई कि दर्शन सर आपने अल्टो में से बलेनो में क्यों नहीं आ पाए? अरे यार, धंधे में चलता नहीं है, सोचा था ऐसा होता नहीं है, सब मुझे परेशानी होती है, पैसा ट्रांजेक्शन नहीं होता है, चक्कर नहीं घूम रहा है, मेरे जो कारीगर ऐसा करते हैं, वो काफी सारी उनकी क्वेश्चनरी सामने हो जाएगी। उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं बोलना है, उनको सुनना है, सुनना है, सुनना है। एक बुक है सवाल ही जवाब है, तो उनके जो भी सवाल है उनमें से कोई एक सवाल ढूंढो, उसी में इसी आइडिया आ जाएगी। तो वो बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, मेरे बंदे ही ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ इसमें, तो उसी में से उसको वही मैसेज उसको बोलो, मेरे साथ आ जाओ। इसीलिए तो आपके पास आया हूं, आपको मकान बनाना था ना सर, आपको बलेनो ले दी थी दर्शन जी, आ जाओ मेरे साथ। आपके कारीगर आपको परेशान करते हैं धंधे में, मैं परेशान नहीं कर रहा हूं, पूरी टीम आपके साथ होगी। आपको सिर्फ अभी शुरुआत में मुझे लीड देनी है, यानी आपके प्रोस्पेक्ट जो भी है मैं आपके साथ हूं, आपको बताऊंगा कैसे आगे बढ़ना है। और ज्यादा नहीं दर्शन जी, सिर्फ 180 दिन मुझे फॉलो कीजिए, ज्यादा नहीं। और आप मेरे दोस्त हो, काफी सारी जगह आपने जिंदगी के जुगाड़ खेल लिए, तो 180 दिन मेरे साथ भी खेल लीजिए, हम दोनों मिलके कुछ इतिहास बना देंगे। मुझे आपके 180 दिन ही चाहिए सर, वो आपके साथ जुड़ जाएगा, वो मेरी गारंटी है। आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसी, आप कितने जुनून से, कितनी विश्वास से उसे प्रेजेंट करते हैं, वो ही आपको आईडी दिलवाएगी, वो ही आपको आईडी दिलवाएगी। सबको जी, जो भी यहां बैठे हैं, जिनको भी अभी भी कॉलिंग में कोई तकलीफ है, कैसे कॉल करना है, सबको रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सवाल ही जवाब है, पढ़ लीजिएगा। एक बार सवाल ही जवाब है, पढ़ लीजिएगा, सभी सवालों का जवाब उसी में है। अभी अगर मैं जो भी बोल पाता हूं आज, पहले दिन से आज तक, अभी 6 महीने हो गए मेरा आईडी लगे, तब तो कॉल करने के लिए मनीषा बहन को बोलना पड़ता, मनीषा बहन कॉल कीजिए जरा, हितल बहन जरा कॉल कीजिए, प्रोस्पेक्ट है हमारे पास, मैं कॉल करना नहीं आता। अब वो मुकाम पे आ गया हूं कि हर रोज हितल बहन मुझे 4 से 5 प्रोस्पेक्ट देती है कि सर जी इसको कॉल करो ना 6 ही महीने में, तो आप सीखोगे तो आप सबको ओवरटेक करोगे। सीखना अच्छी चीज है, ईगो को साइड में रखना है, नहीं आता है तो छोटी बच्ची को भी पूछो, उससे भी सीखना मिलेगा। फिर ऐसा मत सोचो कि मेरे पास 100 की टीम है, मेरे पास 500 की टीम है, मैं हितल को क्यों पूछूं, उसके पास को 25 की टीम है, वो दिव्यांगी मैम को क्यों पूछूं, वो तो कुछ करती नहीं है, वो तो टंडन सर की डॉटर है, ऐसे ही उनकी पहचान है, उनको तो हमने देखा नहीं, पहचानते नहीं, और उनके पास ब्रीड का एजुकेशन है, पूछो उनसे, किसके पास क्या है आपको पता नहीं है। मैं ही एक इकलौता नॉलेजेबल हूं, ऐसा मत सोचिए, नॉलेज को शेयर कीजिए। कल मैंने इंटेंसली, मेरे जो बंदे ने काम किया उन्होंने बताया था कि ये काम सर सस्पेंस रखना, मगर हुआ ऐसा। अभी आपको एक बात और बताना चाहता हूं, शेयरिंग, इसके बाद कदम सर का सेशन शुरू होगा, तो एक बात ये बताना चाहता हूं कि हम काफी बार अपनी डाउनलाइन से बिजनेस की भीख मांगते हैं। सॉरी मैंने एक वर्ड यूज किया, गंदा वर्ड है, फिर भी बोलता हूं, हम अपने डाउनलाइन या ऑफलाइन से बिजनेस की भीख मांगते हैं। सर जी मुझे डायरेक्टर में जाना है, थोड़ा खूटा थोड़ा डाल लो, डाउनलाइन में भी भीख मांगते हैं, ऑफलाइन में भीख मांगते हैं। ऑफलाइन को बोलने हैं सर जी आपको सिल्वर में जाना है, थोड़ा मुझे डाल दो ना इस लेग में। ये पूरी जिंदगी आप भीख मांगते ही रहोगे अगर आप में कोई पोटेंशियल नहीं है। क्यों भीख मांगनी, ऐसा बॉन्डिंग करो आपकी टीम के साथ, तो टीम जब भी आप टीम के साथ मैदान में उतरो,
टीम आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे। मांडवी की टीम को 21 तारीख को विपुल ठक्कर का बर्थडे है। मेरे जो नए नए लीडर अभी जुड़े हैं, विपुल ठक्कर सर, उनका बर्थडे है। तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए सर, मैं 21 तारीख को मैं और शाह सर आपको मिलने आ रहे हैं। बस वो उसके दिमाग में चल गया, मेरे लीडर मुझे मिलने आ रहे हैं तो मैं उनको खाली हाथ कैसे जाने दूंगा। तो वही टारगेट लगा के बैठे हैं वो कि 21 तारीख को मैं शाह सर और दर्शन सर को 5 लाख का मैं बिजनेस दूंगा। कैसे दूंगा मुझे पता नहीं है, मुझे मेरी बर्थडे में मेरे अपलाइन को ये गिफ्ट देनी है। तो ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बना दो, बिजनेस ऐसे ही आएगी। आप अब की डाउन लाइन को ऐसा मत सोचो कि मुझे बहुत आता है तुझे नहीं आता, ऐसे उसको डिक्रीज मत करो, उसके साथ बॉन्डिंग होगी। एक नया भी इंफॉर्मेशन मिला कि जतिन सर जो है उनके बेटे का भी जन्मदिन उसी के दिन है 21 तारीख को। तो दोनों जुड़ गए कि शाह सर और दोनों को मुझे कोई भी एक बंदा, अब ये मुझ सस्पेंस रहा नहीं, मैं बोल देता हूं, कोई भी एक बंदा हम दोनों में से फाउंडर में जाएगा और कम से कम मांडवी टीम में से 5 लोग कोर कमेटी में जाएंगे। वो सब लगा के बैठे हैं। आप सबको पता है 10 बजे सब जब सर मुझे पूछते थे सर क्या है बिजनेस, तब मैं बताता नहीं था क्योंकि तब तक मेरे पास कुछ नहीं था। पलक सर ने भी कल परसों मुझे बोला था सर कुछ ज्यादा बोल गए आप, मगर वो बिजनेस मेरे जेब में है, जितना जेब में उतना ही बोलता हूं, अभी काफी सारा बाकी है। और ऐसा है कि आज के दिन में 80 से 100 किलो वो बेचने वाला, आज के एक ही दिन में उनका वो भी जो में मैंने डाला 45 kg का, वो मैंने 5 दिन पहले का बिजनेस डाला है। कल का बिजनेस मैंने नहीं बोला, काफी सारा सस्पेंस है अभी। तो जो उन्होंने बताया मुझे कि किसी को मत बताओ, तो वो कुछ धमाका करने वाला है। तो कल मैंने ऐसे ही कंपटीशन डाल दी, मांडवी टीम के साथ आ जाओ। तो उसमें होगा क्या, काफी सारे लोग हो गए, जैसे बिपिन सर है, मेरे से जेलसी होगी बिपिन सर को, पलक सर को, ये साला कल का आ गया, इतना क्यों कमाता है, चलो मैं भी दौड़ता हूं। तो ये क्या होगा, मुझे तो अच्छा है, मेरे से सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन परीख पे जेलस हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग। होगा क्या, एलिकॉन का टर्नओवर बढ़ जाएगा। होगा क्या, लाख का 12 लाख मुझे मिलना है ना, वो 3 साल में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई हाँ सर जी, बोलिए सर, बोलिए सर। टॉपिक पे आइए प्लीज, टॉपिक पे आइए प्लीज। यही टॉपिक है सर जी, प्लीज डोंट इंटरप्ट। तो ऐसे आपको लिस्ट बनाने के बाद जो आपको स्ट्रक्चर बनानी है, पहले उसके साथ बॉन्डिंग कीजिए। अगर उसके पास बिजनेस के लिए जाएंगे कि मुझे एलिकॉन का बिजनेस बढ़ाना है, तो नहीं बढ़ेगा। प्रॉस्पेक्ट को एक भी प्रॉस्पेक्ट मिल गया है ना, विपुल ठक्कर जैसा, जतीन निमावत जैसा, वो काफी है। 100 के प्रॉस्पेक्ट नहीं चाहिए, तो लिस्ट बना के विपुल ठक्कर को ढूंढिए, लिस्ट बना के जतीन निमावत को ढूंढिए और उसको सपोर्ट कीजिए। वो सपोर्ट ही आपको डायमंड बना देगा। उसको नीड है अभी कुछ रिटेलिंग करने की, तो उसको सपोर्ट कीजिए। तो अभी मैं कदम सर के पास, सर जी, शाह सर जी, पलक सर, जो भी मैं जब भी बोलता हूं, अभी ट्विंकल मैम की बात हुई, विपिन सर के पर्सनल बात, उसको भी मैं कन्वर्ट कर पाता हूं, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये मैं बताना यही चाहता हूं कि कॉलिंग करने के बाद छोड़ मत देना। किसी ने 7,000 दे दिया, बस अपना काम हो गया, चलो आगे बढ़ो, ऐसा मत करना। तो आपको पूरी जिंदगी, ये अभी सीख रहे हो ना, पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, लिस्ट और कॉलिंग, लिस्ट और कॉलिंग। अगर नहीं करना है तो प्रोस्पेक्ट को बचाइए, उसको हेल्प कीजिए। मैं कदम सर के पास आता हूं। कदम सर जी, आगे की। नमस्कार दोस्तों। क्या सर, नमस्कार, एलिकॉन मॉर्निंग। एलिकॉन मॉर्निंग सर जी। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि भाई इनवाइट कैसे करना है। अभी जो लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड चल रहा है दोस्तों, उस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम अपने लीडरों के टच में हैं फोन के जरिए, लेकिन हम किसी को समझाना है, किसी को बताना है, तो हम एक ही चीज का उपयोग कर सकते हैं भाई, मोबाइल का। सही है ना। तो मोबाइल के जरिए हम अगले आदमी को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, तो उसके 2-3 प्रकार है, मैं उस हिसाब से आपको बात करूंगा। लेकिन आज ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें लोगों ने जो यूज किया हुआ है, सोशल मीडिया को यूज किया है, तो उस मीडिया को कैसे यूज करना है, उसके ऊपर मैं 2 शब्द बोलने जा रहा हूं। और वो इस तरह के हैं दोस्तों। टाइम पीरियड आज जो है, टाइम पीरियड क्या है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम पीरियड है। तो सोशल डिस्टेंसिंग में हमने क्या किया है, सोशल मीडिया को यूज किया है दोस्तों। सही है। तो सोशल मीडिया के थ्रू
अब मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, जूम ऐप, सिस्को ऐप जैसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से लोग मिल रहे हैं, मन के भेद खोल रहे हैं। बात बताओ तुम अपने मन की और जानो जन जन की। बताओ उन्हें तुमने क्या पाया, कितने समय में क्या कमाया, क्या करने जा रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। आप दूर करो कुछ गलतफहमियां, शेयर करो कुछ सबूत उन तक, दूर करो कुछ गलतफहमियां जो पाली थी उन्होंने आज तक। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग बात तुम्हारी मानेंगे। कुछ महारथी होंगे जो अपने मन की भी ठानेंगे, जो मानेंगे तुम्हारी बात, उन्हें लेकर चलो साथ, क्योंकि वो बन गए हैं अब तुम्हारे कुछ खास। अब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा बनाने से इतिहास, क्योंकि एलिकॉन के लीडर्सों ने अब इतिहास रचने की कसम खाई है। वही तुम्हारे सच्चे राई है, भाई है और हरजाई है। दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है कि आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, उसको हम प्रॉपर वे से ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बना के उसको यूज करना है। सेकंड बात, हमें उसको क्या बताना है। थोड़ी ये टॉपिक पे पॉइंट हो तो किसी को लिखना हो तो लिख लेना दोस्तों, कि फोन करना दो टाइप का होता है। एक इन्विटेशन देना, भाई मैं एक ऐसी कंपनी में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हम बात कर रहे हैं, वो सब नहीं बात करनी है दोस्तों। उनको ये बताना है कि दोस्त मुझे तेरे पास फ्री टाइम कब है, फ्री टाइम कब है, कि हमारे लोगों की जूम ऐप पे है, सिस्को ऐप के ऊपर हमारी मीटिंगें होती है, तो ये ऐप तेरे को डाउनलोड करके लेनी है। भाई सिस्को ऐप डाउनलोड करके लिए तो हमारी 4 बजे पर डे मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये इंसान, ये लेवल का इंसान है, उन्होंने इतना इतना अर्निंग किया हुआ है, या डॉक्टर राकेश भट्ट है, शाह साहब है, पलक साहब है, दर्शन परीख साहब है, ये जो लीडर है, वो लीडरों ने ये इनकम ली हुई है और ये लोगों का प्लान होने वाला है। तो कुछ ऐसी चीजें आपको जानने मिलेगी इस लॉकडाउन के पीरियड में कि आपको आपकी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये हमने फोन पे बात की, जनरली बात की, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप एक लीडर हो, लीडर को तकलीफ क्या हो रही है कि आपसे कोई सीनियर बंदा आपके टच में आ गया और उसको आप कन्विंस करना है, आपको फोन पे इनवाइट करना है। तो उसको इनवाइट कैसे करना है, पॉइंट लिख लीजिए सबसे पहले दोस्तों, नोट और पेन साथ में ले लीजिए। उनको ये बताना है दोस्तों, ऑलरेडी वो नेटवर्कर है, वो नेटवर्क कर चुका है और कर रहा है, तो उनको ये बताना है सर कि सर जनरली मार्केट में अभी 2 प्लान चल रहे हैं और दोनों प्लान सक्सेस प्लान है। एक प्लान है बाइनरी, दूसरा प्लान है जनरेशन। अब उनके ड्रॉबैक बताने हैं, सर जनरली बाइनरी में मैंने भी पैसा कमाया है और आप लोग जनरेशन में और बाइनरी दोनों में काम किया हुआ है, दोनों में पैसा कमाया है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है दोस्तों कि बाइनरी में अगर एक लेग चली है तो पैसा आता नहीं है, अगर ऐसा हो जाए दूसरी अगर लेग चलती है तो पैसा आता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक लेग चले और पैसा आए तो वो बोलेगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट सर जनरेशन की बात करता हूं कि जनरेशन में एक लेग चलती है तो कुछ नहीं मिलता है, दूसरी लेग चलती है तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम लेग को मेंटेन करते तो पैसा आता है। सही है, लेकिन हम लीडर है, हम लेग को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग हैं, क्या वो लेग को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों? वो बताएगा नहीं। होता क्या है कि वो दो तीन महीना अपने साथ में काम करते हैं, वो अपने लेग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस कारण वो अपने टीम से आउट हो जाते हैं। जनरेशन के कुछ ड्रॉबैक बताओ, फिर उसको आपको इच्छा रखेगा, बोले बोले ऐसा कौन सा प्लान है। उसको प्लान नहीं बताना है फोन पे, सिर्फ ये पॉइंट लिखवाने हैं, उसको ये पॉइंट बताने, उसके दिमाग में डालने हैं। अगर वो रियल लीडर है तो ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा है। फिर बताना है कि अगर आपने कभी पेंशन की बात सुनी है सर, जो आरबीआई के सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से मिलने वाली है, बोले ऐसी तो कोई कंपनी है नहीं, गवर्नमेंट खुद पेंशन योजना गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, ऐसी तो कुछ बात है ही नहीं दोस्तों। तो ये 2 या 3 पॉइंट के ऊपर ही उनको बात करनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा बात करना नहीं है उनसे फोन पे। अगर लीडर है वो आपको समझ रहा है कि सिंगल लेग में कोई कंपनी पैसा नहीं देती है, उसको पता है 2 लेग चलेगी तो ही पैसा मिलने वाला है। जनरेशन वाला बंदा है तो उसको पता है कि जनरेशन में 2 या 3 लेग मेंटेन करनी है तो पैसा आएगा। अगर कोई बंदा एलओबी ले रहा है या एलओबी तक पहुंचने वाला है दूसरी कंपनी में, तो हमारी जो इनकम है बीबीआई, तो उसको ये बताया जाए कि आप जो एलओबी ले रहे हो उस एलओबी में कुछ टर्म्स कंडीशन है, अगर आप ये महीने अगर मेंटेन नहीं करते हो तो अगले महीने एलओबी का चांसेस नहीं है। तो वैसे पॉइंट उनको खाली पॉइंट क्लिक करने हैं और उनको थोड़ा कंफ्यूजन में रखना है।
सारी पिक्चर खोलनी नहीं है मोबाइल के ऊपर, उनको कुछ कंफ्यूजन में रखना है और कंफ्यूजन में रखकर उनको इनवाइट करना है। अगर किसी को भी ये 2 मैंने पॉइंट बताए हैं उसमें कुछ सवाल है तो आप दीर्शन जी उनको अनम्यूट करिए और मुझे से सवाल पूछवाने को कहिए। दर्शन जी, हेलो दर्शन भाई, ये जो मैंने 2 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं उनको कुछ सवाल हो। हेलो दर्शन जी, यस कदम सर, हेलो। सब पॉइंट बताए हैं, उस पॉइंट को लेके किसी को कुछ सवाल है क्या, पूछ लो। हाँ सर जी, बताइए सर। सॉरी सर, मुझे एक अर्जेंट कॉल आया था तो उस पे था, मैंने सुना। कोई बात नहीं, बोलिए सर। मैंने जो 2 पॉइंट बताए हैं अभी लोगों को, हाँ, उसके अंदर कुछ सवाल है क्या वो पूछ लो उनको। ओके। बिपिन टंडेल सर, इज देयर एनी क्वेश्चन? टंडेल सर, नहीं, ओके। सर शॉर्ट में सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे बिपिन टंडेल सर ने बोला नो या यस, बस इतना ही बोलना है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, टाइम अब हम नहीं बिगाड़ेंगे। सभी को 1 बाय 1 अनम्यूट करना, अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको पूछना है, नहीं हो तो ना बोलना है। ये कॉलेज गेमर जिसका भी है, जागृति मैम शायद, कॉलेज गेमर 18, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? सर नहीं है, थैंक यू मैम। क्योंकि आप जितने भी लोग बैठे हो हर बंदा सीनियर है, उसको ये जवाबदारी मिलेगी। उसके डाउन का बंदा बोलेगा सर ये फलाना लीडर है मेरे पास, उसको थोड़ा बात करो, थोड़ा कन्विंस करो। उसको ये 3 टॉपिक पे ही बात करनी है दोस्तों। ओके। दीप्ति मैम, दीप्ति 6/7, दीप्ति मैम, दीप्ति 6/7 से कौन लॉग इन हुआ है? कल जब लॉग इन हुआ तो सर No, प्लीज। no, sir, no, sir. Okay. Mukesh Andel. ओके ओके, ओ सर जी ग्रेट सरप्राइज। सॉरी सॉरी सॉरी, कदम सर सॉरी, ये सेशन यहीं रोक के कदम हम फिर से टंडेल सर आप 15 मिनट का भी सेशन ले लो, आप आए वो बड़ी चीज है। तो कोई ऐसी बात दिव्यांगी मैम ने तो अच्छी से बताई, तो हाउ टू कॉल ए प्रोस्पेक्ट, Sir. एक छोटा सा टॉपिक ले। Sir. हाँ सर जी, हाँ सर दर्शन जी, जी, ये जो टॉपिक अपन छेड़ रहे हैं, जो आज लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, हाँ उसमें ये जो फोन के ऊपर जो भी लोग यूज करने वाले हैं, हाँ, अपने सीनियर को परेशान ना करें। अगर Okay. वो टॉपिक अगर उनको पता है तो Okay. खुद ही लीडर को कन्विंस कर सकते हैं। Okay. तो ये टॉपिक को थोड़ा क्लियर करो, उसके बाद सर के से अपन Okay. 10-15 मिनट का और टाइम देंगे। Okay. इसमें खाली सवाल पूछ लो किसी को कि किसी को कुछ सवाल है। डन सर, डन सर। धर्मेश जी, धर्मेश जी, No, sir, it's clear. थैंक यू। मनीषा मैम, मनीषा मैम आर यू देयर? हाँ सर बोलो। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है आपका? मैं क्या बोलती, नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। पार्थ भाई, सज्जन सिंह बैठा है। पार्थ भाई आपका कोई क्वेश्चन है? पार्थ भाई, जी सज्जन सिंह, सभी के पास आता हूँ सर। पारुल मैम, पारुल मैम, पारुल मैम आप मुझे सुन सकती हो? आपका कोई क्वेश्चन? सज्जन सिंह जी बताइए आप। जी सर। नो नो क्वेश्चन। आप ही के रिक्वेस्ट पे ये टॉपिक छिड़ा है। हाँ 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 हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन नहीं, चलो। अभी स्टडी मोड में हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए ओके, देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत आती है तो कदम सर है, मैं हूँ, कहीं भी कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ ओके ओके। ओके ओके। अनिरुद्ध सिंह सरवैया सर, भावनगर से। सर जी आपका कोई सवाल? सर जी, ओके, तो
सर मोस्ट ऑफली सभी लोग आ गए हैं, सबको पूछ ले, कोई सवाल चाहूंगा नहीं कि है। किसी को सवाल रहा नहीं होगा। या अब क्लियर हम हो गया किसी सब? को इनवाइट करते हैं, हेलो हाँ सर, हाँ सर। दोस्तों, हम किसी को इनवाइट करते हैं, अगर रूम देखो 70% मोबाइल पे इनवाइट करना है हमको, रूबरू इनवाइट कम करना है। क्यों पूछो? कारण ये है कि हम जब इनवाइट करते हैं मोबाइल के ऊपर, तो वो जब हम रूबरू मिलते हैं तो वो पूछेगा यार क्या है, बता ना कौन सी कंपनी है, क्या है, किस तरह से, किसी को जुड़ाना है, किसी को क्या है, कुछ पैसा भरना है, ये सारे सवाल हमको पर्सनली पूछ सकता है जब हम रूबरू मिलते हैं। तो हमें उसको इनवाइट करना है फोन के ऊपर ही, ये पॉइंट रखना है। 70% इनवाइट करना है फोन के ऊपर ही, 30% इनवाइट ऐसे करना है कि जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, जैसे किसी के बंदे का लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है और हम उसके घर गए, हम बता रहे हैं कि भाई लड़का आपका पढ़ाई में बहुत बढ़िया है और ये आगे जाके पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का, उसको डॉक्टरी लाइन के अंदर जाएंगे तो कितना खर्चा होगा? बोले यार 40-45 लाख रुपया खर्चा है दोस्तों। तो बोले ये पैसा बच्चा अगर इतना अच्छा पढ़ रहा है तो आपके पास कुछ अरेंजमेंट है? वो बताएगा नहीं, अभी ये महंगाई के जमाने में मेरे दूसरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी मुझे खर्चा है, मेरी फैमिली है, मेरी तनख्वाह है 55,000 रुपया या 40,000 रुपया, लेकिन उसमें मुझे मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस इंसान को बोल सकते हैं कि अगर आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट है, अगर आप मुझे साथ देते हो तो हम इस बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं। तो बंदा बोलेगा किस तरह से? बोले एक काम करो, कल शाम को 4 बजे मीटिंग पे बैठो, या एक काम करो कि एवरी संडे एलिकॉन की मीटिंग होती है, दोपहर को होती है, तो आप आ जाओ और वहीं पे दूसरे डॉक्टर राकेश भट्ट है जिन्होंने डॉक्टरी की हुई है, बराबर है, उन्होंने डॉक्टरी करने के बाद भी कुछ सिस्टम लाए हैं, वो सिस्टम के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो इस तरह से भी उनको इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि हर इंसान को ऐसा बताना है कि भाई हम तेरे फायदे के लिए आए हैं। कोई भी इंसान को उसके फायदे की अगर बात बोलते हैं तो ज्यादा पता चलता है। उसको इतना बताना है कि हम तेरे फायदे के लिए आए हैं, मैं तेरे यहाँ पे जो आया हूँ तेरे फायदे के लिए आया हूँ, तू मुझे अपना 1 घंटा सिर्फ दे देना। 1 घंटे तेरा क्या बिगड़ने वाला है? सही है, तो 1 घंटा मुझे दे दे, मैं 1 घंटे के अंदर आपको, मतलब हम उसको लेके जाना है डायरेक्ट ऑफिस पे या तो अपने लीडर के पास। शुरुआती में जो नया बंदा होता है उसको खुद को प्लान नहीं दिखाना है, ये ध्यान रखना। जो नया बंदा है जिसने जिसने 6 का पुल मारा नहीं है, जब तक 6 का पुल आपका लगता नहीं है तब तक आप अपने लीडर के थ्रू ही प्लान बताना है, अकेले प्लान बताना नहीं है किसी को। या इनवाइट करने के लिए भी इसका प्लानिंग इस तरह से करना है जो मैंने बताया उस तरह से। लीडर का पूरा उपयोग करो, लीडर को बोलो सर फलाना फलाना इंसान है, मुझे उससे बात करवानी है। वो लीडर ये बात करता है, ये बात आप भी सीख जाओ, धीरे धीरे ये डुप्लीकेशन आपके अंदर ला दो आप, क्योंकि भविष्य में आप भी लीडर बनने वाले हो। तो आप डाउनलाइन भी बोलेगी कि सर मुझे इस बंदे से बात करवाओ। तो मैंने जो 3 टॉपिक पे बात करवाई है उससे ज्यादा चौथा टॉपिक को छेड़ना नहीं है दोस्तों। क्लियर? हेलो यस सर, यस दर्शन जी, किसी को सवाल हो तो पूछ सकता है, कुछ भी सवाल हो तो। सभी ने इन्विटेशन को लेकर क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। तो अब टंडन सर इन्विटेशन के 7 पॉइंट है, इन्विटेशन के टोटल 7 पॉइंट है। उसको कभी प्रैक्टिकल हम जब बैठेंगे ना तो उसको हम क्लियर करेंगे एज ए प्रैक्टिस करके, 1 to 1 बताएंगे भाई किस तरह से इनवाइट करना है। ठीक है सर, चलो जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट टंडेल साहब को सुनना टंडेल चाहेंगे सर हम अभी। टंडन सर, नाउ मीटिंग इज योर सर। यस सर। नाउ मीटिंग इज योर। हाउ टू Yes, sir. प्रोस्पेक्ट, हाउ टू कॉल अ प्रोस्पेक्ट, क्या बोलना है? हेलो सर, एमपी शाह साहब है? नहीं शाह सर अभी उनकी मदर को हेलो। लेके दवा दर्शन भाई। सर। हाँ सर, हेलो शाह सर की मदर की तबीयत MP ठीक साहब नहीं है तो वो दवा अच्छा। गए हैं। ओके, मनीषा बेन है? मनीषा मैन है ना? ओके, मेरा अपलाइन है ना, इसीलिए मैं याद कर रहा हूँ। मनीषा मैन है। बोलिए सर। प्रियंकी मैम का सही में बहुत अच्छा रहा। नाउ आप Yes, हमें sir. बताइए I think मैंने कॉल कैसे करना है वो बताइए सब कुछ। ओके ओके, कॉल बहुत तरीके से सिंप्लिसिटी से करने का है। हम सब लीडर आज मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और कॉन्टेक्ट इनवाइट का जो चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया चैप्टर है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। जो कॉन्टेक्ट इनवाइट पूरा बिजनेस का फाउंडेशन है ना, आपका जो फाउंडेशन, जो बड़े से बड़ा फाउंडेशन जो बनेगा ना, तो कॉन्टेक्ट इनवाइट पर बनेगा। कभी कभी कहीं लोग बहुत गलती करते हैं,
कभी कभी क्या है कि ये कॉन्टेक्ट इनवाइट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। कॉन्टेक्ट इनवाइट जब तक हमारा कोई भी कॉलिंग जाएगा ना, वो कोई छोटे हो बड़े हो ऐसी कोई हमें बिलीव नहीं करने का, ये मानना नहीं कि बड़े या छोटे हैं। कॉन्टेक्ट इनवाइट जब तक करो कि तब तक मना नहीं करेगा सामने वाला, बराबर। और कॉन्टेक्ट इनवाइट में क्या है कि हमारा बिजनेस का पूरा नॉलेज देना नहीं है। कॉन्टेक्ट इनवाइट इसीलिए करने का है कि हमारा बिजनेस में बहुत बढ़िया सा मीटिंग हो रहा है, बढ़िया सा इवेंट, आपको एक बार आना है और जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो इवेंट आप एक बार देखोगे तब आपको ये बिजनेस का पोटेंशियल पता चलेगा। तो पहले कॉन्टेक्ट इनवाइट किसी को भी करो, मना जब तक नहीं करेगा तब तक करने का। मान लो कि हम क्या करते हैं, एक बार कॉन्टेक्ट इनवाइट किया और सामने वाले ने मना कर दिया तो बाद में कॉन्टेक्ट इनवाइट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना भाई। हम लोग जानते नहीं कि वो जो बिजी शेड्यूल में है, कोई कहाँ गए हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो हम नहीं जानते, राइट। वो बताते नहीं है और वो कौन सी ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं वो भी हम जानते नहीं, और हम खुद बिलीव कर लेते हैं कि यार मैं कॉन्टेक्ट इनवाइट किया मगर ये मुझे रिस्पांस नहीं मिला, मैं दूसरी बार नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करने का। जब तक वो फोर्सली आपको बोलेगा कि नहीं यार ये मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे को फोन मत करो और मुझे ये कॉन्टेक्ट इनवाइट में, ये बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज मुझे फोन मत करो। अभी से आपको मैं कोई दूसरी बात के लिए कॉन्टेक्ट इनवाइट करोगे तो मैं सुनूंगा, मगर नेटवर्क का मुझे कुछ करना ही नहीं है। ऐसा जब तक नहीं बोलेगा ना तब तक इनवाइट करना है। कॉन्टेक्ट इनवाइट बहुत ये हम कॉन्टेक्ट इनवाइट जब जैसे जैसे करते रहेंगे तो मान लो फर्स्ट टाइम किसी को भी आपने कॉन्टेक्ट इनवाइट किया और मना कर दिया तो दोबारा अच्छा से स्पीकर आएगा हमारा सेमिनार में, और वो सेमिनार में आपने कॉन्टेक्ट इनवाइट नहीं किया वो सामने वाले को, जो पहली बार मना किया है सिर्फ मैं नहीं आ पाऊंगा ऐसा मना किया है, मगर उसने डायरेक्टली ऐसा नहीं किया कि मुझे कुछ ऐसा करना ही नहीं, ऐसा कुछ डायरेक्टली आपको मना करेगा ना, उसको मत करो, उसको मत डिस्टर्ब करो, बराबर। मगर जिसको जिसको आपका लिस्ट आपने बनाया है, मान लो कि आप दर्शन भाई आपने जो लिस्ट के बारे में बताया, ट्विंकल दिव्यांकी ने बताया कैसे कैसे लिस्ट बनाने का, लिस्ट तो आपके पास ढेर सारा हो गया। वो लिस्ट ये हमारा रॉ मटेरियल है और उनमें से सिलेक्ट कर करके आपको मान लो कि अहमदाबाद में, सूरत में मीटिंग सेमिनार कहाँ कहाँ चल रहा है वो आपको मालूम है, सामने वाले को मालूम नहीं है, बराबर। अभी मान लो कि हम बड़ौदा में है और बड़ौदा में आपका क्लोज फ्रेंड रह रहा है और हमारा बढ़िया सा स्पीकर आ रहा है, मान लो कि एनपी शाह साहब आ रहा है और मान लो कि राकेश भट्ट साहब भी लेने वाला है कुछ सेशन, तो ऐसा कुछ मीटिंग बहुत बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। तो वहां बड़ौदा का लिस्ट आप निकालो, सेपरेट लिखो, सेपरेट अलग अलग शहर का नेम लिस्ट सेपरेट लिखो और वो सब में से सब बड़ौदा वाले को कॉन्टेक्ट इनवाइट करो वन बाय वन, कि देखो बिपिन भाई ये बहुत बढ़िया हमारा जो बिजनेस जो चल रहा है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उनमें बहुत बढ़िया स्पीकर आने वाला है। आप वो स्पीकर को पहले सुनोगे ना तो आपको ऐसा एहसास होगा कि क्या है यार, कितने ब्रिलियंट लोग हैं, ऐसा लगेगा। और ऐसे लोगों को सुनते सुनते हम लोगों ने भी ऐसा सीख लिया है। तो हम बिजनेस करेंगे ना करेंगे वो तो बात की बात है, मगर एक बार स्पीकर को सुनने के लिए आ जाओ। बिजनेस में तो बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत पोटेंशियल है। बिजनेस या नहीं यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग का जिसको मालूम हो गया ना वो तो करोड़ों अरबोपति बन गए। जो समझ लिया अच्छी तरह से, जो समझ लिया वो तो करोड़ों अरबपति बन गए, और हम लाखों में खेलते हैं, हम हजारों में खेलते हैं। हमको पता ही नहीं है कि क्या पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। तो ऐसे एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ आ रहे हैं और ये फ्री ऑफ चार्ज है यार, फ्री ऑफ चार्ज मीटिंग है। और ऐसा स्पीकर आ रहे हैं तो एक बार बिजनेस की इंफॉर्मेशन तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी, मगर पर्सनल रिलेशन हमारा बन जाएगा। कहीं कितने बढ़िया से बढ़िया दोस्त वहां मिलेंगे, ये समकक्ष लेवल के, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले समकक्ष लेवल के थॉट प्रोसेस वाले लोग मिलेंगे यार। आप क्यों ये मिस करेंगे? आपको मिस करना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं सर, आऊंगा, सामने से बोलेगा आऊंगा 101% आऊंगा।
नहीं 101% नहीं, 100% आना है आपको। 101% वाला क्या है कि कभी जरूरत से ज्यादा और स्मार्ट होता है। 100 ऐसा बोल देने का नहीं, 101%, 110% नहीं, 100% आने वाले हो तो बोलो, मैं आपकी जगह रखूंगा। नहीं तो मैं, मेरे यहाँ बहुत लोग आने वाले हैं और ये आई थिंक आज तो पूरा हॉल ही पैकअप हो जाएगा। तो पहले आप आपकी सीट में रिजर्व कर दूंगा, आपको आना ही आना है। ओके, आओगे? श्योर श्योर आऊंगा, 100% आऊंगा। अभी मान लो कि दूसरी तीसरी बार आपने कॉन्टेक्ट इनवाइट किया, पहली बार कर चुके नहीं है, चौथी बार कर चुके नहीं है, मगर आप पांचवी बार, वो बड़ौदा में ही है और एमपी साहब आने वाले हैं और राकेश भट्ट साहब आने वाले हैं। आपको मालूम है यार, बहुत बढ़िया स्पीकर है, उसको मालूम नहीं है ना, उसको कुछ मालूम नहीं है। तो उसको कन्विंस करो कि देखो ये इवेंट होने जा रहा है, आपको मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैंने कॉन्टेक्ट इनवाइट किया। दोस्त आज आपका लाइफ चेंज होने वाला है, मेरा तो हो गया है। हमारी जो मीटिंग सेमिनार में जो लीडर आएंगे ना, वहां आप देखने मिलेंगे कि कितना पैसा लोग बना रहा है, कितना बढ़िया सा ये बिजनेस का पोटेंशियल है। आप एक बार देख क्यों नहीं लेते? आपको मैंने ऐसा नहीं किया कि यार करो ही, करना ही है, करना ही है, ऐसा फोर्स तो मैंने किया ही नहीं। आपको अच्छा लगे तो हम साथ में हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में सब साथ देते हैं। हमारा भाई जितना साथ नहीं दे, हमारा रिलेटिव्स, हमारा कुटुंबीजन साथ नहीं देते हैं, इतना साथ ये लोग देते हैं। एक बार आके देखो, यहाँ की जो ये लोगों की जो भावना है ना, आपको पता चल जाएगा कि हम कभी कभी क्या कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। हाँ, मैंने भी की गलती ऐसी, मुझे भी एमवे में बहुत लोगों ने बुलाया, मैं नहीं गया था। मगर एक बार जयेश भाई ने फोन कर दिया कि डीके भाई आज तो आना ही आना है, मेरे लिए आ जाओ। तो मैं जाके बैठ गया, और मैं जाके बैठ गया, तब मैंने जहाँ सामने वाले स्पीकर को सुना ना, तब मुझे पता चला कि यार मैं इंडस्ट्रियल, ऐसा मुझे लगता था कि हम लोग तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो ये छोटी मोटी मीटिंग क्यों टाइम वेस्ट करने का, ऐसा हम सोच रहे थे। जब वहां जाके बैठा ना, तब मुझे पता चला। और मैं वो जो स्पीकर स्टेज पर जो बोल रहे थे ना, वो समकक्ष मेरे लेवल के ही एजुकेशन थे, तो ही इज ऑल्सो इंजीनियर थे। तो मुझे रिलेट होने लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ का माहौल अच्छा लगा। और ऐसे मैंने भी ज्वाइन कर लिया। तो आप ही आ जाओ आज और एक बार बिजनेस देख लो। वो भी जो चौथी बार मना किया ना, वो भी सर आएगा। 101% नहीं, 100% आएगा। ओके, तो ऐसे मान लो कि अभी नए 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 2-3 बाकी है, मगर लिस्ट में हमारा 10 लोग हैं, मगर 10 से 10 लोग को आपको इनवाइट करना है। एक बार इनवाइट करना है बस। आप इनवाइट शॉर्ट में करो, लॉन्ग में करो। थोड़ा एक बार किया तो ये आपको ये पॉइंट अच्छा लगे तो वो पॉइंट बोलो, टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, मगर एक बार इनवाइट करके उसको बुलाओ। और जो लोग आपका कांटेक्ट इनवाइट करने से 10 लोग आपने कांटेक्ट इनवाइट मान लो कि 15 लोग को किया, तो 15 में से मान लो कि 2 लोग आ गए ना, 2 लोग, तो आप सक्सेस है। आपका कांटेक्ट इनवाइट पावरफुल है। आपको ऐसा नहीं सोचने का यार कोई आया नहीं है, ये 2 ही लोग आए, अरे 2 लोग आए बहुत आ गए यार, 2 में से एक आदमी ने कर दिया और मेरे जैसा डायमंड मिल जाएगा आपको। मैंने तो सोच ही लिया है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे भी करके डायमंड जाना ही जाना है। ओके, तो ऐसा करके बुलाओ सबको। मान लो कि 10 को इनवाइट करो। एक बार आपने कांटेक्ट इनवाइट करना सीख लिया ना, मान लो कि 10 को इनवाइट किया, 10 में से 2 आए। दूसरी बार कांटेक्ट इनवाइट किया, 15 को कांटेक्ट इनवाइट किया, 15 में से 5 आए। ऐसे आपका शार्पनेस बढ़ेगा। आप जैसे जैसे आपका स्पीच का घड़तर करोगे ना, वैसे वैसे होगा। आप पहली दफा आपको मान लो कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम, मतलब वही चीज दोबारा करो, वही चीज। और सर ने जो बोला है ना, जो सवाली जवाब, एक बुक पढ़ लो। सर मैं सबको आपको बोल रहा हूँ, हम लोग क्या सोचते थे, मैं भी ऐसा ही सोचता था, मुझे भी ऐसा ही था कि यार इंजीनियरिंग, डबल इंजीनियरिंग किया और डबल इंजीनियरिंग कर करके इतनी बुक पढ़ी है, इतना बड़ा बड़ा ठोकरा जैसी बुक पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग सड़ गया है, अभी क्या बुक पढ़ने का है। मैं भी ऐसा ही सोचता था यार। खरेखर रियली मैं आपको सबको बोलता हूँ, ये सब चीज गलत है। आप बुक पढ़ना एकदम आवश्यक समझो।
ये बिजनेस में बुक पढ़ो, एक ही घंटा पढ़ो, आधे घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, मगर एक पन्ना पढ़ो, आधा पन्ना पढ़ो, मगर पढ़ो, बुक पढ़ो। ये जो चीज जो हम लोग जो शेयर कर रहे हैं ना, अभी मैं आपके लिए मैं कुछ बोलने वाला हूँ, सिर्फ आपके लिए, आप सबके लिए, जो मेरे लिए बोलता हूँ, उसको बोलते हैं हम हमारी भाषा में सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक कर हमारे लिए करना है हर रोज। मैं अभी जो सेल्फ टॉक करूंगा आपके लिए करूंगा, आप सभी के लिए करूंगा। हेलो दर्शन सर, हेलो हेलो बोलिए सर। हाँ सर जी। सर, मेरा वॉइस आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है ना। हाँ, बीच में सर यस सर कुछ मुझे कोई किसी का कुछ आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नहीं। वीडियो नहीं चल रहा है मेरा मोबाइल में नहीं सर, अभी। सभी लोग म्यूट करके आपको सुन रहे हैं। ओके ओके, इंटरप्ट अभी मैं आपको नहीं हो आप रहा है। सभी हाँ के लिए सर। मैं हाँ सेल्फ टॉक करना जा रहा हूँ। हाँ सर। तो ये आपको सुनना है और आपको सभी को खुद के लिए हर रोज करना है। ओके सर। ओके। मैं मेरे लिए करता हूँ, मगर आप मैं आपके लिए जो बोलूंगा उसमें मैं जो पहले मैं मेरे लिए बोलता था, ओके। उसकी जगह पर मैं आप सब इन्वॉल्व करूंगा। ओके सर। ओके। तो ये आपके लिए मैं सेल्फ टॉक करने जा रहा हूँ अभी। ओके सर। जरा मैं पानी पी लेता हूँ प्लीज। जरा आप हाँ यार, थोड़े इंटरनली बात कर लीजिए। कोई बात नहीं राइट, सर, कोई बात नहीं। हाँ प्लीज प्लीज। एक और बात बताऊं सर, जब तक थोड़े फ्रेश होते हैं, सर ने जो बताया था कल मैंने रिवीजन किया था, तो अभी आप मीटिंग में जब भी बैठो सर, सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मीटिंग के लिए क्या? पावर ऑफ सबमिशन रखें। मीटिंग के लिए पावर ऑफ सबमिशन, मीटिंग को समर्पित रहिए। जो भी बंदा, जो भी लीडर यहाँ बोलता है ना, वो उनके दिमाग में आपको कुछ सिखाने के लिए बोलता है। उसकी पूरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर आप सोचोगे कि अभी टंडेल सर बोल रहे हैं तो उनको बीच में रोक के मैं कुछ दलील कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो वो चलने मत दो। टंडेल सर के सेंटेंस को दिमाग में चलने दो, उनको जमाओ अपने दिमाग में, समझने की कोशिश करो, और बाद में क्वेश्चन करो, काफी सारे क्वेश्चन करो, पर बीच में कभी इंटरप्ट मत करो, क्योंकि फाइनली जो मैसेज देने चाहते हैं ना, वो इंटरप्शन से वो मैसेज का जो चार्म रहता है वो चार्म निकल जाता है। उनके दिमाग में होता है मुझे क्या मैसेज कन्वे करवाना है, वो लेके ही वो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनके दिमाग में पूरी मीटिंग रहती है कि मीटिंग में मुझे क्या सिखाना है। उसके लिए काफी सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें करके, गोलमोल करके आपको सिखाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा जब होता है ना, अभी नेटवर्क मार्केटिंग में हम छोटे बच्चे, उनको बड़ी सी पिल्स नहीं खिलाई जाती, वो पिल्स को पानी में भिगो के चम्मच में डाल के स्पून फीडिंग करवाया जाता है। तो स्पून फीडिंग के लिए ऐसा छोटा छोटा बात करना पड़ता है। तो जो भी जानते हैं नेटवर्क को, उनको लगेगा ये क्या कर रहे हैं टंडेल सर, ये दिव्यांगी मैम क्या कर रहे हैं, मगर यहाँ पे नए बंदे भी है, उनको आराम से सिखाना पड़ेगा। उनको उनके हजमे से ज्यादा बोल दोगे तो वो नेटवर्क से भाग जाएगा, तो उसको आराम से हल्के से सिखाना पड़ता है। तो आप आराम से सुनिएगा। कोई भी नेटवर्क लीडर यहाँ बैठा है, वो मीटिंग के बाहर का कोई आपको नहीं बोलेगा, मीटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर ही बोल रहा है, उसको कुछ मैसेज कन्वे करना होता है, तो उसके लिए कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें लाएगा, वो लाने के बाद वो मैसेज कुछ कन्वे करना चाहता है। यस सर, आप कोई सुनना चाहेंगे? हाँ सर। यस सर, हाँ यस सर, यस सर। अभी कभी कभी क्या है कि टाइम ज्यादा हो जाता है, ऐसा ऐसा तो मेरे लिए अभी टाइम कितना बचा है वो मुझे बता दीजिए प्लीज। देयर इज 5 मिनट लेफ्ट सर, बिकॉज 11:55 हो गई है, तो 12 बजे हम खत्म करते हैं। ऐसे तो हम बोलेंगे तो 1 बजे तक सब बैठेंगे सुनने के लिए, पर मीटिंग का एक डिसिप्लिन रखना है, ओके तो बाकी की बात कल कर लेंगे, ऐसा है। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5 मिनट बची है ना, 5 मिनट में जितना कवर हो सकता है ओके, कर दूंगा। आप जरा मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा 5 मिनट पूरे होने। नहीं नहीं, आप टॉपिक खत्म कर दो सर। मैं सिर्फ आपके लिए ही बोलने वाला हूँ, आप Okay, सभी के लिए ही बोलने वाला हूँ, आप सभी Done. लीडर के लिए ही बोलने वाला हूँ, Done. आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि नए बंदे आए हैं। नए बंदे को आपने जो बोला है वैसे ही हमें ट्रीट करना है। हमारा खुद का सबॉर्डिनेट है, अभी हमारी जिम्मेदारी है उसको कैसे आगे ले जाना है। या बराबर? या ये
नेटवर्क मार्केटिंग में हम कभी कभी क्या समझ लेते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, हम खुद की एफिशिएंसी भूल जाते हैं। हम क्या है, हम रियली आपको मैं बोलता हूँ ना कि ये जो बंदे जो बैठे हैं हमारे सामने, जितने लोग बैठे हैं, उसकी कैपेसिटी जो है ना, उनमें से 1% 2% भी काम नहीं निकलता है। और जिसने 3% 4% काम निकाल दिया ना, बहुत बड़ा काम निकाल दिया सब। हेलो, सुनाई देता है? हाँ सर, सुन रहे हैं हम। हेलो, सुन रहे हैं हाँ सर, हाँ। आपको सुन तो रहे हैं। उसमें सबको सबके भगवान ने हमें सबको बहुत बड़ी सी एनर्जेटिक बनाया है, बहुत बढ़िया एफिशिएंट हमारा दिमाग है, बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर हम कभी हमारी लाइफ के लिए भगवान ने जो दिया है हमें, उसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक। या रियली ये बात है ना, हम खुद को हम भूल गए हैं कि हमारी हम क्या कर सकते हैं। ये जो बैठे हुए हैं ना, सब क्या है वो, कोई कुछ समझता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। मगर मैं बोलूंगा, मैं आपके लिए जो कुछ बोलूंगा ना, आपको रियली पता चल जाएगा, नहीं मैं हूँ यार, वही तो मैं हूँ। ऐसा आपको महसूस होगा, राइट ना? तो ये भगवान है ना, हम इंसान है ना, तो भगवान भी इंसान थे ना, या सर, राइट ना? या सर, भगवान भी इंसान थे, या सर। हैं? तो भगवान ने इंसान को ही बनाया, यानी कि हमको सब पावर है ना, पावर भगवान के पास जो पावर है ना, सब पावर दिया है दोस्त। या भगवान के पास जो पावर है ना, हाँ, वो सब पावर दिया है हम। सही है। ये कोई ऐसा यानी मान लो सभी लोग क्या है कि अलग अलग चीज भगवान ने भेजा है, कुछ मकसद से भेजा या है सभी लोग को, कि भाई तुम जाके इंजीनियर बनना है, तुम्हें जाके डॉक्टर बनना है, तुम्हें जाके ये बनना है। सब अपनी अपनी फर्ज के हिसाब से, अपना अपना इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर भगवान ने कुछ मकसद से यहाँ भेजे हैं। तो सभी लोग सिंगर तो नहीं बन सकते है ना, सभी लोग एक्टर नहीं बन सकते हैं, या सर, सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी लोग इंजीनियर नहीं। एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। इक्वल क्वालिटी तो भैया के दिमाग में आपका वही निकलेगा, राइट? ओके, और आप ओके। अभी जो बैठे हैं ना, हाँ सॉरी सॉरी, अभी अभी आ रही? हाँ, आ रही है, बोलो सर, बोलो, अब आ रही है। हाँ, आप ईश्वर का शारीरिक रूप हो, हम्म, आप समुची शक्ति हो, आप समूचा ज्ञान हो, समुची प्रज्ञा हो, लेडीज ओके, के लिए आप समूह है आपके पास। आप सोच सकते हो, आप बहुत सोच सकती हो, आप बड़े से बड़ा ड्रीम बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहते हो ना, वो सब आप कर सकते हो। या भगवान के कभी कभी हम सोचते हैं ना, भगवान में जो विश्वास रखते हैं, वो तो भगवान को हर रोज याद करते हैं। मगर कभी कभी क्या है कि वो सक्सेस पाने के लिए अनसक्सेस भी का ठेस भी लगती है ना, तो भगवान को कोसने लगता है। नहीं दोस्त, भगवान को मत कोसो। भगवान ने जो सोचा है ना आपके लिए, वो आप बिलीव नहीं, अभी मैं बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये धरती आपके लिए घूमती है, सिर्फ आपके लिए घूमती है। ये ब्रह्मांड में जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वहां हजारों करोड़ों ब्रह्मांड में ग्रह पड़े हैं, मगर किसी से भी भाव नहीं होता। वो पृथ्वी ऑटोमेटिकली आपकी बचाव के लिए, आपकी उसकी धुरी पर घूमती है, सिर्फ आपके लिए घूमती है। आप सोचो आप क्या हो, आप सोचो आप क्या हो। ये सूरज चांद सितारे जो आसमान में जगमगाते हैं ना, सिर्फ आपके लिए जगमगाते। आप है, इसीलिए भगवान ने आपके लिए आयोजन किया है। आप सोचो आप क्या हो। हम लोग भूल गए हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या छोड़ा है यहाँ पर, हम रियली भूल गए हैं। मगर ये सब ब्रह्मांड में जो कुछ चल रहा है ना, वो सिर्फ आपके लिए है। ये सूरज चांद सितारे, ये पक्षियों, सुबह सुबह में पक्षियों गीत गाते हैं, मधुर कंठों से जो गीत गाते हैं ना, तो सिर्फ आपके लिए गाते हैं दोस्त।
ये बोले महाराज अभी तो सुबह हो गई, जग जाओ, हमारे लिए दाने पानी का व्यवस्था करो। वो गीत गाते हैं ना, तो वो हमें एक मैसेज देते हैं, तो हमें उसके लिए सोचना चाहिए। हमारे लिए आज 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 हम लोगों को पता चलता है, तो मैं तो ये सेल्फ टॉक 15 साल से मैं कर रहा हूँ, मगर आज हमें पता चलता है कि जो कोरोना जो लगा है ना, तो ये पशु पक्षी जानवर सभी को हमारे बिना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मांड में कोई जीव को हमारे बिना चलता नहीं है। आप सोचो आप क्या हो, राइट? सही बात है सर। ये धरती सूरज चांद सितारे वो तो हम लोग ने सब देख लिया। ये समंदर में जो ज्वार भाटा आती है ना, हाँ। यानी कि भरती ओट, गुजराती में भरती ओट बोले छे, हाँ, અને ज्वार भाटा हिंदी शब्द है। हिंदी में। तो ज्वार भाटा आती है तो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ आपके लिए। आप सोचो आप क्या हो, क्योंकि उससे पूरी ब्रह्मांड का वातावरण का चेंज होता है। यानी पश्चिमी पवन आती है, दक्षिणी पवन आती है और उत्तरी पवन आती है। वो हमारे लिए चेंज किया है दोस्त। वो सब हमारे लिए, हमारे लिए भगवान ने बनाया है, और हम Oh, खुद को sir. भूल गए। Great, हम great. क्या हो? हाँ. यस, हम खुद भूल गए। हम क्या है, हम खुद भूल गए। Your what? Touch the ये heart. जो हम लोग जो गए हैं ना, हम लोग जो यहाँ वहाँ जो दो तीन जगह पर जाके आए ना, वो बिछा के रखा है। पर्वत तो हाँ भगवान ने हमारे लिए बिछा के रखा है। वो बर्फीली पहाड़े हमारे लिए बना के रखा है, और ये काली घटाएं हमारे लिए बना के रखी। आप सोचो आप क्या हो। तो ये सब है हमारे में एफिशिएंसी। आप समय के पाबंदी हो, इसीलिए ये स्पीच आप सुन रहे हो सभी की। आप समय के पाबंदी है, आप एनर्जेटिक है, आप में कुछ इतनी टैलेंट है, इतनी एनर्जी भरी पड़ी है, और ये एनर्जी को आप यूटिलाइज ही नहीं करते। अब ये बिजनेस के लिए आप 1% यूटिलाइज करोगे ना, तो आपका बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा। मगर हम लोगों ने हमें खुद को नहीं पहचाना, राइट? सर सुन रहा है? सही बात है सर, सही बात है। Your words touch the heart. आपके सभी शब्द हृदय के आर पार जा रहे हैं। आपकी आवाज की भीनाश को मैं महसूस कर सकता हूँ। राइट। अभी मैं पूरा कर दूंगा, यस। अभी 1 ही मिनट दे दीजिएगा। नहीं, आप Right? बोलते रहो। आप बहुत सब कुछ सुन। मैं बीच में से अभी छोड़ दूंगा, नहीं, अभी आप क्योंकि टाइम पूरा हो गया है। पूरा कर लीजिए। सब नहीं, सुन रहे हैं आपको। क्योंकि ये बहुत यानी कि ये हम है ना, हम जो बैठे हुए हैं सब है ना यार, सब डायमंड है, सब डायमंड है। या आपको मालूम नहीं है, ये अभी 1500 2000 का जो ग्रुप बना है ना, वो एलिकॉन का बना है दोस्त। हमारा 1500 2000 बन जाएगा ना, तब मुझे याद करना। सही बात है। हमारा खुद का सबका 1500 2000 डिस्ट्रीब्यूटर हमारा खुद का बन जाएगा ना, उसके बाद मुझे याद करने का। ये सेंटेंस आपको कहां से कहां ले जाएगा। ओके। यानी कि अभी जरूरत है बहुत सब मीटिंग अटेंड करो, ये करो, ये अटेंड करो, मगर आप एनर्जाइज नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक्शन प्लान में हमें कन्वर्ट करना है। ये धरती सूरज चांद सितारे मैंने बोला, ये सब ब्रह्मांड में सब कुछ चल रहा है, आपके लिए चलता है। सिर्फ भगवान ने आपके लिए बनाया। आप सोचो आप क्या हो। आप ब्रह्मांड के मालिक हो, ब्रह्मांड के वारिस हो। ये ब्रह्मांड आपके लिए बना हुआ है, ये ब्रह्मांड के वारिसदार हो आप धर्मात्मा हो। आप कुछ भी कर सकते हो। आप जितने लोग को ये बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे ना, उसके लिए आप धर्मात्मा बन जाओगे। आप सोचो दोस्त। और आप एक डायमंड हो। आप एक डायमंड नहीं, आप क्राउन डायमंड हो, आप ब्लैक डायमंड हो, आप ब्लू डायमंड हो, आप स्टार डायमंड हो, आप क्राउन डायमंड। वो डायमंड की पिन तो ये सर ने बनाई है ना, आधी बनाई है। जब हम लोग जाएंगे ना, ब्लैक डायमंड ब्लू डायमंड तक जाएंगे ना, तो सब सर को डबल डायमंड का पिन देना पड़ेगा। डबल ब्लू डायमंड, डबल क्राउन डायमंड, डबल क्राउन एम्बेसडर, डबल क्राउन एम्बेसडर।
डबल फाउंडर क्राउन एम्बेसडर, आप ये सब पिन बनाना पड़ेगा, इतना बिजनेस जाएगा। आप सोचो आप कहाँ पर जाओगे, क्या हो। और एक बार एक ही वाक्य में बोलता हूँ, ये जो कोरोना हुआ है ना, एक सभी के दिमाग में यही हुआ है कि हम हैं तो ये सब कुछ है, मान लो कि हम नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप सोचो आप क्या हो। वाह वाह। हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये बाद में सब खंडेर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोरोना में सबको पता चल गया होगा, कोरोना में ये जीव जंतु जानवरों को हमारे बिना कितना मुश्किल हो रही है अभी, है कि नहीं। तो सही। ये एहसास हो गया है कि हम क्या है। हम ऐसा नहीं, मैं आपको आप सभी को ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप भगवान हो और भगवान की जगह ले सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते हो। भगवान से कम भी नहीं हो, क्योंकि भगवान की सबकी एनर्जी आप में भरी पड़ी है, मगर हम लोगों ने यूटिलाइज नहीं की। बस ये हमारा एक वीक पॉइंट है, मनुष्य का एक वीक पॉइंट है। बाकी वो कभी कभी कोसते हैं ना भगवान को, वो गलत चीज है, राइट। राइट सर, तो राइट। हम सभी एक साथ में बोलेंगे आई एम ए डायमंड, मैं बोलूंगा आई एम ए डायमंड, तो जोर से बोलने का आपको जगह पर, आपके आजू बाजू में उन लोगों को पता लगना चाहिए आई एम ए डायमंड, आई एम I am a diamond. आई एम ए डायमंड, I am a diamond. I am a आई एम ए diamond. डायमंड, I am a आई एम ए diamond. डायमंड, I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. सब बोला आई एम ए डायमंड, क्राउड I am a diamond. डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. I am a आई एम ए diamond. डायमंड। I am a डायमंड diamond. का बीज है ना सर, मैं डायमंड का बीज बोलना चाहता हूँ आपके दिमाग में। Wow. एक एक बार डायमंड का बीज बो गया ना, हाँ वो दिमाग में चला गया ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना, हाँ। तो आपका आप आज ही डायमंड बन गए, समझो वाओ। आज ही डायमंड बन गए, राइट। वाओ सर। चलो ओके, गुड बाय। जोरदार जोरदार। इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी। दर्शन हाँ भाई। सर जी, हाँ सर जी, हाँ सर जी, सुन रहा हूँ आपको। मैं दो सब सर्किट बोलने जा रहा हूँ। श्योरली मैं आपके पास सर ही ने आ आज रहा सर्कल था, दिया। आपके पास ही आ रहा था सर। इतनी अच्छी स्पीच दी तो उस पे कुछ हो जाए कदम सर की ओर से। मैं क्लोजिंग करने जा रहा हूँ, सर की बात को पूरा करके यहाँ क्लोजिंग करने जा रहा हूँ। ओके। बोल रहा हूँ मैं थोड़े। ऐसी बानी बोलिए मन का आभा खोल, औरन को शीतल करे सो आप ही शीतल होए। ओए हाय। तो सर ने आज जो बात की, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास डाला कि हम खुद कुछ है, हम नर नहीं नारायण है, हम नर नहीं नारायण है, ये बात उन्होंने अपने आप में फील करवा दी। सही में। तो ये बात हर एक को पता होना चाहिए, हम नर नहीं है नारायण है। तो भगवान ने हमारे अंदर भी एक नर और नारायण रखा हुआ है, ठीक है। हम अपनी सही। शक्तियों को नहीं पहचान पाए आज तक, सही है। ठीक है। उसी शक्तियों को पहचानना है, बराबर है। और डबल जुस्सा के साथ में हेलीकॉन की इस तरह से मीटिंग को कंटिन्यू रखना है। थोड़ी एक और बात बोल रहा हूँ कि जूम ऐप पे आज वेस्ट बंगाल की टीम बैठने वाली है ओके सर जी। ओके जूम ऐप पे थोड़ी मजबूरी है जूम ऐप को डालने के लिए, उनके पास वो सिस्को ऐप नहीं है, ओके। इसलिए थोड़ा मजबूरी बस हमको जूम ऐप में मीटिंग लेनी पड़ी है। तो वेस्ट बंगाल की टीम 2 बजे बैठने वाली है। जो भी बंदे को अगर नए प्रॉस्पेक्ट को 2 बजे भी बिठाना है तो बिठा सकते हो, चाहिए तो दर्शन परीख जी को मैं व्हाट्सअप करता हूँ वो डिटेल्स, हाँ सर, बराबर है। जूम की सभी को मैं भेज दूंगा। मेरे पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट हाँ है जिसमें 2 बजे हाँ सर। 2 बजे जूम पे ऐप पे मेरा प्लान होने वाला है। उसके वाह। बाद 4 बजे कंपनी का प्लान होने वाला है, कंपनी के लीडर्स का, भट्ट साहब या शाह साहब, दोनों में से किसी का है, मुझे नहीं। सर जी हमको ऐसा लगा। आज शायद शाह सर अवेलेबल नहीं हो गए, तो हमें किसी को रेडी रहना पड़ेगा। और अभी 11 जो बंदे हम बैठे मेरे साथ, सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे मीटिंग खत्म होती है हाथ जोड़ के प्रेयर करो कि सर की मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत है, शाह सर की मदर को, वो जल्दी से ठीक हो जाए। हम सर सब साथ में ऐसा कुछ करेंगे प्रेयर। तो मदर में अभी सर बिजी है सुबह से, तो उनको कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो ये मीटिंग है, इसमें अच्छी से अच्छी बात आपको सिखाई जाती है। आज जो बात सीखी है कैसे प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है, कैसे उसको कॉल करना है। उससे अच्छी बात यह है कि आपके पास 100 बंदे हो
या 500 बंदे हो, वो बड़ी बात है। मगर आपके पास जो एक बंदा भी आपके भरोसे आया है, अभी 100 बंदे नहीं है, मगर एक ही बंदा आया है, तो उसको संभाल के रखिएगा। ऐसा सोच के आगे मत दौड़िए। मेरे पास जो भी बंदे अभी है, मेरी 78 की ग्रोथ है, टीम है, और टीम में काफी सारे बंदे अभी अपना धंधा कर रहे हैं, तो मैं उन पे चिढ़ता नहीं हूँ, उस धंधे में भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो है बॉन्डिंग, वही आपको आगे ले जाएगी। आपकी बिजनेस की भूख आपको आगे नहीं ले जाएगी। वो बंदे को जीत लो एक बार। अगर लीडर साथ सर जा रहे हैं और 5 लाख का बिजनेस गिफ्ट में दे रहे हैं, ऐसा आपकी टीम में करो कि आप आपके फील्ड में जाओ और आपकी जो डाउन लाइन है आपको गिफ्ट में बिजनेस दे। उनको ऐसा फील हो, हमने मांगा नहीं है, साह सर और दर्शन सर ने मांगा नहीं है कि हमको बिजनेस दो। उनको अंदर से फील हुआ कि सर आएंगे मांडवी में और खाली हाथ जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो अभी हमको गिफ्ट देने के लिए कुछ हम बता सके राकेश सर को, इसके लिए वो दौड़ रहे हैं अभी। तो ऐसी बॉन्डिंग बना दो। आपके पास 5 बंदे 3 बंदे काफी है, तो बॉन्डिंग ऐसी बना दो कि पूरी टीम को, पूरी एलिकॉन को चैलेंज कर पाओ कि मेरे पास 3 बंदे हैं। मैंने 2 बंदों के दम पे आपको चैलेंज किए सभी को कि आ जाओ मैदान में मेरे सामने कंपटीशन करने के लिए। तो बंदे ऐसे तैयार करो। काफी सारी टीम नहीं चाहिए, टीम ऐसी चाहिए जो फैमिली जैसी हो। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग मी केयरफुली। कल सुबह फिर से 10:30 बजे मिलते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है कॉलिंग के बारे में, उसी को आगे ले जाएंगे, हाउ टू कॉल द प्रोस्पेक्ट और ऑब्जेक्शन ओवरकम। आप कॉल करना है, कॉल का प्रैक्टिकल यहाँ होगा कल, तो झूठे मूठे कॉल करना है। मैं आपका प्रोस्पेक्ट बनूंगा, आप मुझे कन्विंस करना, या कदम सर आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे, उनको आपको कन्विंस करना है, या फिर मनीषा बहन आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे, उनको आपको कन्विंस करना। आप कैसे कन्विंस कर पाते हो और कितने ऑब्जेक्शन आते हैं, इसको आप कैसे ठंडे कलेजे से कन्विंस करते हो, तो वो प्रैक्टिकल वाला कल होगा यहाँ पे सेशन। और उसी के साथ आधे घंटे का टंडेल साहब को इनवाइट करना है। या सर टंडेल सर होंगे ही होंगे। और वो आधे घंटे का डीके टंडेल सर, आधे घंटे का ये प्रैक्टिकल सेशन होने के बाद जो भी ऑब्जेक्शन आए उसमें कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में आपका गाइडेंस चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे कि 10:30 टाइम शुरू होता है, जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ 4 से 5 बंदे आ ही जाते हैं, तो हम 10:35 को मीटिंग शुरू कर पाए, ऐसा कुछ करना है। और 11:30 तक खत्म करने हैं। सबके टाइम वैल्यूएबल होते हैं। सर ने आज जो बताया हु एम आई, वो मुझे इतना ही पता है, मेरे पापा का मैं लड़का हूं, या आपके पापा की लड़की हो, या आपके पति की पत्नी हो, या पत्नी के पति हो, ये आंसर नहीं है। सर ने जो बताया व्हाट एम आई, हु एम आई, वो खुद को पूछना है, अंदर कुछ पोटेंशियल छुपा है। ये दर्शन पर एक ऐसा जानता था कि उसको सिर्फ इंग्लिश ग्रामर आता है, उसको नेटवर्क नहीं आता है, उससे ये नहीं होता, ये नहीं हो पाएगा। रिटेलिंग करना, किसी के ये टीम बनाना, ये मेरी बात नहीं है। मैं ग्रामर सिखा सकता हूँ अच्छे से, मगर अगर सीखने की चाह हो तो अभी मैं पूरी टीम को चैलेंज कर रहा हूँ कि आ जाओ मैदान में। मैंने 10 लाख का टारगेट दिया था सर को, तो 5 लाख तो मेरी टीम ही देने वाली थी, तो बाकी का 5 लाख तो आ जाएगा ना। और मेरे से जेलस होना शुरू कर दो, मेरे से आगे जाना है आपको कि मैं जो बिजनेस देता हूं उससे ज्यादा बिजनेस देता है। तो ऐसे अंदर अंदर हेल्दी कंपटीशन रहेगी तो अपनी कंपनी कोई मुकाम पे पहुंचेगी, और कंपनी पहुंची तो हम भी पहुंचे। ऐसे बैठे बैठे तो सर के पास कोई जीनी का चिराग नहीं है तो घिस घिस के पैसे देंगे, वो हमारे बिजनेस में ही से पैसा आता है। तो बिजनेस हमको साथ में मिलके करना है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी आइडिया आपके पास है, तो आप अकेले क्यों आइडिया यूज कर रहे हो, उसको इंफॉर्मेशन शेयर करो, तो औरों को भी ये आइडिया पे चलने दो। तो सभी लोग एक आइडिया शेयरिंग होगा तो जल्दी से बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सो टंडेल सर थैंक यू, दिव्यांगी मैम थैंक यू आपके वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और सभी जो अभी जुड़े हैं सभी को थैंक यू वेरी मच। 4 बजे अपना कंपनी का प्लान इसी लिंक पे होगा, तो 4 बजे फिर से जुड़ना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू। ओके बाय। बाय सर।